this inspirational thought, I would like to tell you and remind you again that we at Omega Financial will continue to work for creating more valued customers and creating awareness among them throughout life. I'm happy that we have over 3,500 customers with us today, and many of them are sitting in front of me as well. अब मैं सीधा प्रोग्राम पे आ जाता हूँ. I must introduce myself. I'm Yogendra Singh, Director of Omega Financial. Would like to honor all of you who are present here, and those who could not join by any circumstance. And there are many people who are joining on directly YouTube Live. I would like to welcome and honor them as well. After 1 year gap, definitely I can see happy faces in front of me. इन पिछले 4-5 सालों में बहुत enriching experiences दिए हैं. Some are good, some are bad, definitely. But one thing is very sure, financially we turned out to be more mature. We learned how to handle the things. I remember a situation when people become panicked जब market गिरता था. आजकल phone आते हैं और हमें पूछते हैं कि सर कोई opportunity है क्या? This shows that maturity increases time over time, and definitely we must owe thanks to the terrible times that we have seen in the last 4-5 years. And definitely market is a big teacher, I tell you. All Sensex, Nifty, fixed income, किसी भी बात कर लें, I'm not that qualified. I must say there are more qualified people in front of me right today. But मार्केट ने most unmentioned and hidden theories हमें सिखाई हैं, जो हमने शायद सिर्फ theories में पढ़ी थी, practically नहीं देखा. So I consider myself as a rich again. We all are rich again, not by wealth, by experiences, million of experiences. And I'm proud to say that all 3,500 people kept faith in us. And they are feeling good. I hope they are feeling good in somewhat the journey with Omega Financial up to still. And I tell you, as far as the investor basis is concerned, last 24 months we have created nearly 500 customers who have shown faith and joined Omega Financial. I must not boast, but the bond with all the existing customer also grew very stronger. Talking about the assets, yes, we grow. With all the trust and confidence of all the investors, we can proudly announce at this forum that we are currently managing over 370 crores, of which 300 crores is from the mutual fund, the rest from the fixed income and wealth and other direct equities. As far as alpha creation is concerned, alpha, I tell you, alpha is a slightly written over benchmark over expectation. Yes. Almost every person, I suppose, is happy because on papers we have created 100% alpha for all the people who have spent the duration of goal with us. Trust is a big word, and now understand the meaning. Statistics बताता हूँ, trust समझ में आएगा. Normally, जैसा मुझे पता चला है कि equity investment में, equity mutual fund में, average investor hold a period of near about 2.8 to 3 years only. Although market has given a terribly good returns over a span of 40-50 years, but average investors 3 साल से ज़्यादा रुक नहीं पाते. But for Omega people, Omega investors, we have a statistical data 7 साल के आसपास का average investor हमारे साथ equity में time देता है. So I must owe contribution of completely to investors only. So a captain can only sail through a bad ship if the passengers have the faith and confidence and patience. So we literally thank you all. Colleague, Director Mr. Krishna Gupta is going to brief you more about this. A warm welcome to all of you. Today's event, Nivesh Ki Baat 2024, is the 14th in the series of Mega Investor Meet that is continuing in Omega Financial since many years. And today we are going to enlighten ourselves with some investment behavior concepts, disciplines, and of course, advanced thought, through which wealth making can be made better. Topic of the event, right place, right time. It brings a lot of opportunity, and that obvious as being at the right place and at the right time. Now, without being late, I would like to hand over the mic to Mr. Ashish Somaiya sir to enlighten us with their insights. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Thank you very much. आप सभी अपना समय निकाल के यहाँ पे आए एंड सबसे ज़्यादा मैं ओमेगा फाइनेंशियल की टीम का शुक्रिया करूँगा क्योंकि इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे आके आप सबसे बात करने का मुझे मौका दिया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम एंड कमिंग हियर. और आज आप जानते हैं कि पूरे देश भर में
हर जगह अलग नाम से बोलते हैं, बट देश भर में बहुत बड़ा त्यौहार है। तो फेस्टिव सीजन की आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि अभी नया साल शुरू हुआ है, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश यू वेरी वेरी हैप्पी 2024। नया साल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहे, बहुत फलदायक रहे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। सो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे, जो मुझे बताया गया है, विच इज़ राइट प्लेस राइट टाइम। सो बिफोर आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने से पहले मेरे पास कुछ सवाल है आप लोगों के लिए। सो एज वी गो अलॉन्ग आई विल बी आस्किंग यू, जैसे आप इसको क्विज समझ सकते हैं एक तरीके से, राइट। सो 2-3 क्वेश्चंस है यहाँ पे, और क्या है कि क्वेश्चंस जो है वो थोड़े मुश्किल है, तो क्योंकि आप उसका शायद जवाब आपको पता होगा नहीं होगा, या क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल है, तो मैंने क्वेश्चंस के साथ हिंट भी यहाँ पे लगाया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चंस मुश्किल है तो हिंट भी दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे अभी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ये जो टॉपिक है इसका ख्याल कहाँ से है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि दुनिया का सबसे फेमस और सबसे सक्सेसफुल निवेशक या इन्वेस्टर कौन है, तो आप बता सकते हैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और सबसे फेमस इन्वेस्टर, शेयर बाजार के लिए बोल रहा हूँ मैं, सबसे सक्सेसफुल और सबसे फेमस इन्वेस्टर कौन है दुनिया में? मेरे को हिंट देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं, करेक्ट। सो इट इज ऑब्वियसली मिस्टर बफेट, राइट। अभी दूसरा सवाल मैं आपको पूछता हूँ, अगर मैं आपको पूछूं कि आप में और मिस्टर बफेट में सिमिलरिटी क्या है, तो बता सकते हैं आप? मेहनती दोनों है। हाँ जी, दोनों हम लोग बहुत मेहनती हैं। इन्वेस्टर है। मेहनती है, ओके। इन्वेस्टर है सारे इन्वेस्टर है। वो भी इन्वेस्टर थे, वो भी इन्वेस्टर है, आप भी इन्वेस्टर है। तो एक बोला मेहनती है, फिर दूसरा बोला कि दोनों इन्वेस्टर है। और कोई सिमिलरिटी? अर्ली इन्वेस्टमेंट। अर्ली इन्वेस्टमेंट। आपको मैं एक हिंट देता हूँ। जैसे क्या है कि वॉरेन बफेट जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत फेमस है ना, तो इनके हर जगह पे काफ़ी इंटरव्यूज होते हैं। इनको कहीं भी इनको वीडियो पे कैप्चर किया जाता है, इनका इंटरव्यू होता है। बहुत सारे लोग इनको पूछते हैं कि मिस्टर बफेट आपकी सफलता का राज क्या है? मिस्टर बफेट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आप जानते हैं जब भी उनको पूछा जाता है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो क्या जवाब देते हैं पता है आपको? आपने कभी पढ़ा है कहीं पे? Has anybody come across that whenever he is asked what is the secret of your success, तो क्या जवाब देते हैं? सुना है कभी आपने? Patience, okay. What else? ऑनेस्टी। हाँ जी, पेशेंस। इसके अलावा क्या बोला? आई थिंक जियान ने मेरे को बोला कि जो जो सही जवाब देंगे उनको कुछ प्राइज भी मिलने वाला है, तो आप सोच के जवाब देंगे। जब भी मिस्टर बफेट को पूछा जाता है, हाँ बोलिए, आप बोलिए। Apart from patience, controlling your expenses and the drive for basically expenses, I'll stick to that. Excitement, expenses, kind of. Controlling expenses, Yeah. having patience. What else? जब भी मिस्टर बफेट को पूछा जाता है कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो क्या जवाब देते हैं? मैडम ने बोला पेशेंस, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन, टाइम। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी मिस्टर बफेट को पूछा जाता है ना व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, वो हमेशा क्या बोलते हैं पता है? वो ये बोलते हैं, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड आंसर देते हैं, लेकिन घूम फिर के उनका जो सार निकलता है वो यही है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि मेरी पैदाइश 1930 में अमेरिका में हुई, ये मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न है। तो आपको याद है यहाँ पे जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे? राइट प्लेस राइट टाइम। तो इतना बड़ा दिग्गज आदमी, इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी जो है मिस्टर बफेट, इनको भी जब पूछा जाता है कि आपके सक्सेस के पीछे का राज क्या है, तो बोलते हैं कि मैं सही जगह पे, सही समय पे, सही जगह पे मेरी पैदाइश हुई, यही मेरे सक्सेस का कारण है। इसका मतलब क्या है कि समझो 1930 में अमेरिका में इनकी पैदाइश हुई, तो बोलने का क्या मतलब है?
अगर मिस्टर बफेट की पैदाइश 1930 में अमेरिका के बजाय केनिया या बांग्लादेश में होती तो आप उनको मिस्टर बफेट के तौर पे नहीं जानते ना। और अमेरिका में ही पैदाइश होती लेकिन 1930 के बजाय 1830 में होती तब भी आप इनको मिस्टर बफेट के नाम से नहीं जानते। तो बोलने की बात क्या है कि इतना बड़ा आदमी जो है वो ये बोल रहा है कि 1930 में अमेरिका में पैदाइश हुई तो जाहिर सी बात है कि 1940s, 1950s और अर्ली 60s में इनका स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन ये सब हुआ होगा। जिन्होंने भी लिटरेचर पढ़ा है वो जानते हैं कि इतनी बड़ी बर्कशायर हैथवे जो है वो तो टेक्सटाइल कंपनी होती थी जो उन्होंने कौड़ियों के दाम 1965 में खरीदा और फिर उसको पूरा उसके जरिए वो निवेशक बन गए। और निवेशक होने का इनका जो कार्यकाल है, जो करियर है, वो 1970s, 1980s और 1990s में अमेरिका में चला। करेक्ट। और इनका जो निवेश का कार्यकाल है, इनका जो करियर है, इनका इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है वो तब चला जब अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया। तो इतना बड़ा दिग्गज आदमी ये बोलता है कि भाई जैसे देखिए हम लोग को, आप है, हमको अगर कोई बोलता है किसी कारण से, समझो कहीं पे हमारा इंटरव्यू आता है और हमको कोई बोलता है कि अरे साहब आपने तो कमाल कर दिया, कितना काम कर दिया आपने, तो क्या क्या बना दिया। अगर हमको कोई ऐसा बोलता है तो हम क्या जवाब देंगे? हम बोलेंगे अरे यार मैं तो बहुत ही गरीब खानदान से हूँ, मैं तो बिजली के स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई किया करता था, मेरे पास तो स्कूल में यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं थे, हमारे पिताजी तो गवर्नमेंट में काम करते थे, तो मैंने बहुत मेहनत किया। वैसे तो मेरा जैसा आदमी सक्सेसफुल होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने इतना जी तोड़ प्रयास किया, फिर देखो मैं यहाँ पहुँच गया। ऐसा जवाब देते ना लोग। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर से अमीर लोगों में से जो आदमी है वो क्या बोलता है? वो ऐसी सब बातें नहीं करता है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि भाई मैं सही समय पे सही जगह पे था और जब मैं अपनी पारी खेल रहा था तो मैदान बहुत ही अच्छा मिला मुझे। करेक्ट। तो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इतना बड़ा आदमी जब बोलता है, जैसे आप क्रिकेट भी देखते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, बल्लेबाज आपको, बैट्समैन जो है ना, वो आपको बहुत चमत्कारी लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी पिच पे खेल लेते हैं लोग। करेक्ट। सो इतना बड़ा आदमी बोलता है कि वो इतना बड़ा निवेशक इसलिए बन गया क्योंकि सही समय पे वो जिया। देयर इज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। कैन यू टेल पीपल टू सिट डाउन प्लीज? ये एक्चुअली ऐसा क्रिकेट स्टेडियम की तरह लोग कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू सिट डाउन प्लीज। सो इसमें जो भी चीजें मैंने आपको समझा दी वो मैं रिपीट नहीं करूंगा प्रेजेंटेशन में, लेकिन हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे। सो अगला सवाल मेरा यह है कि इतना बड़ा आदमी जो है वो भी अपने सक्सेस के लिए बताता है कि भाई मैं सही समय पे सही जगह में पहुंच गया, इसलिए मैं मिस्टर बफेट बन गया। राइट, दैट इज व्हाट ही सेज। और 1960s, 1970s, 80s में जब अगर इनका इन्वेस्टमेंट का कार्यकाल चला तो अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर बन गया। करेक्ट। तो ये टॉपिक और ये बोलने वाली बात क्या है कि अगर 2020, 2030, 2040 के शतक में अगर कोई इंडिया के बाजार में निवेश कर रहा है तो उसको भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सब वॉरेन बफेट बन जाने वाले हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट बनने के लिए सही समय पे सही जगह में होने के अलावा 70 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ता है। राइट। क्योंकि इन्होंने व्हेन ही वाज 13 इयर्स ओल्ड, आज उनकी उम्र कितनी है पता है आपको? करीब करीब 95, 94 और 95। इन्होंने निवेश करना कब शुरू किया पता है आपको? 13 साल की उम्र में। तो कई लोग ऐसा मेरे को बोलते हैं कि जो लोग अच्छे निवेशक होते हैं वो लंबा जीते हैं। सुना है आपने सब? ऐसे मेरे को कई लोग बोलते हैं कि जो लोग अच्छे निवेशक होते हैं वो लंबा जीते हैं। वो गलत स्टेटमेंट है। जो लोग लंबा जीते हैं वही अच्छे निवेशक बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल हिसाब में देता हूँ आपको। इंडिया में पता है आपको, जैसे लोग बोलते हैं 1980 से सेंसेक्स गिनना, वो सब गलत है। सेंसेक्स आपको गिनना चाहिए 1992 से। क्यों? क्योंकि 1991 के पहले तो हमारे देश में मार्केट बंद था, बाहर के लोग आ नहीं सकते थे यहाँ पे। आज हमारा मार्केट कैप जो है, पूरी स्टॉक मार्केट का लिस्टेड वैल्यू जो है, वो आज करीब करीब $4 ट्रिलियन, मतलब आप समझिए 325 से 350 लाख करोड़ का हमारे मार्केट का वैल्यू है।
ये 1991 में कितना था पता है? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू हो गया लगभग 350 लाख करोड़। तो 1991 के पहले तो 2 लाख करोड़ ही पहुंचा था, तभी तो हमारा मार्केट क्लोज था। ये FII नहीं था, सारे सेक्टर बंद थे, बाहर वालों को इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं था यहाँ पे। तो हमेशा देखना चाहिए 1991 से। आप जानते हैं 1991 से लेके अभी तक हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो GDP है, उसका हर साल का ग्रोथ है 12%। 12% मतलब कैसे? 6 से 7% GDP का ग्रोथ और 5 से 6% महंगाई बढ़ती है हर साल। तो 12% तो नॉमिनल GDP ग्रोथ है हमारे कंट्री का। 12% नॉमिनल GDP ग्रोथ है, उसके सामने 12 से 13% जितना नॉमिनल GDP ग्रोथ है उतना सेंसेक्स की कंपनियों के अर्निंग्स का भी ग्रोथ है। और सेंसेक्स की कंपनियों का अर्निंग का जितना ग्रोथ है उतना ही सेंसेक्स का भी ग्रोथ है, 12%। ठीक है, तो आप एक सीधा सीधा हिसाब लगाइए कि जो चीज हर साल 12% ग्रो करती है उसका निवेशकों के लिए उसका क्या मतलब बनता है? जो चीज हर साल 12% ग्रो करती है, इसका क्या मतलब है? कितने साल में डबल होएगा? 6 साल। ये सबको पता है ना? रूल ऑफ, डज एवरीबॉडी नो रूल ऑफ 72? यस और नो? ये सबको यस बोलना पड़ेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक रूल है, अगर कोई आपको बोलता है ना पैसा 10 साल में डबल होएगा, तो 72 से उसको डिवाइड करिएगा। तो 72 डिवाइड बाय 10, इसका क्या मतलब है कि 7% रिटर्न आएगा खाली। अगर कोई आपको बोलता है कि 20 साल में पैसा डबल होएगा, मतलब आप समझिए कि 3.5% का रिटर्न आएगा। और उल्टा, अगर आपको कोई बोलता है कि ये चीज 12% से ग्रो कर रही है, 12% से ग्रो कर रही है, मतलब 72 डिवाइड बाय 12, मतलब 6 साल में पैसा डबल होगा। ठीक है, अभी आप सोचिए 1991-92 से लेके अभी तक 31-32 साल में सेंसेक्स जो है उसकी 12% की ग्रोथ रेट है, मतलब हर 6 साल में पैसा डबल होता है। तो सीधी सी बात है ना, जो लंबा जिएगा उसका पैसा ज्यादा ग्रो करेगा ना, क्योंकि हर 6 साल में डबल होने वाला है। मैं एक बार एक साहब को मिला था मुंबई में, मैंने आर्थिक व्यवस्था, स्टॉक मार्केट, ये सब पूरा समझा दिया 1-1.5 घंटे में। तो साहब मेरे पास आया, बोला मेरी उम्र है 81 साल की और मेरी मिल्कियत 100 करोड़ की है। मेरी मिल्कियत 100 करोड़ की है, लेकिन मैं 81 साल का हूँ, तो आपका ये सब भाषण सुन के मैं क्या करूँगा? तो मैंने उनको बोला, साहब आपने कभी सोचा है कि जब आप 81 से 87 पहुँचेंगे तो 100 का 200 हो जाएगा? बहुत सारे लोग गिनते नहीं है। और वॉरेन बफेट, चार्ली मंजर, इन लोगों को देख के लोग क्या बोलते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो लंबा जीते हैं। हकीकत क्या है? जो लंबा जीते हैं वही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो सकते हैं, राइट? सो हेल्थ के बिना वेल्थ का कोई फायदा नहीं है। बट कमिंग टू द मेन टॉपिक, अब बोलने वाली बात क्या है कि जितने लोग अमेरिका में 1930 में पैदा हुए वो सब लोग तो वॉरेन बफेट नहीं बने ना। इतने बड़े दिग्गज आदमी है मिस्टर बफेट, उन्होंने क्या बोला कि मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं 1930 में अमेरिका में मेरी पैदाइश हुई, करेक्ट? लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि जितने लोग 1930 में अमेरिका में पैदा हुए वो सारे के सारे लोग तो मिस्टर बफेट नहीं बने ना। तो इससे ये सवाल निकलता है कि इज राइट प्लेस राइट टाइम। अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया के मार्केट में जो लोग 2020, 30 और 40 में निवेश करेंगे वो सब लोग भी राइट प्लेस राइट टाइम पे हैं। सब लोग मिस्टर बफेट नहीं बनेंगे, क्योंकि सब लोग 60-70 साल तक निवेश नहीं करेंगे, और उसके कारण मैं आगे बताता हूँ आपको। लेकिन अभी मेरा सवाल आपसे केवल इतना है, इज राइट प्लेस राइट टाइम, इज इट ओनली अबाउट लक? मतलब आप सही समय पे सही जगह पे हैं तो आप लकी तो है, लेकिन उससे काम हो जाता है क्या? तो सही समय पे सही जगह पे होने के बाद क्या करना पड़ता है? कुछ तो करना पड़ेगा। सही समय पे सही जगह पे होने से तो कुछ काम नहीं होता है ना। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो एक मंजिल से नीचे से ऊपर की मंजिल जाने के लिए एस्केलेटर होता है ना। देखा एस्केलेटर? सबने देखा। अभी मेरा आपको एक सवाल है कि एस्केलेटर में ऊपर के मंजिल पे, एस्केलेटर में ऊपर जाने के लिए क्या करना होता है?
you are not giving any prizes or any chocolates, so there is no reason to answer. मतलब क्या मिलेगा? देखिए बहुत लोग तो आगे भी नहीं बैठते, नहीं तो नॉर्मली लोग आगे बैठते हैं, राइट? अच्छा आप मेरे को बताओ, एस्केलेटर पे ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पैर रखना पड़ता है। आप दिल्ली के टर्मिनल 3 पे गए हैं? दिल्ली के टर्मिनल 3 पे उसका सही मैसेज आता है, क्या बोलते हैं? दिल्ली के टर्मिनल 3 पे ऊपर जाने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए एस्केलेटर है। उसमें क्या बोलते हैं? हैंड व्हील को पकड़ते हुए सावधानी से पैर रखिए, ऐसा बोलते हैं ना? तो एस्केलेटर पे ऊपर के मंजिल पे जाने के लिए एक साहब ने मेरे को एकदम बराबर आंसर दिया था। उन्होंने बोला कि देखो पहले हैंडरेल को पकड़ के पैर रखना है। दूसरा चीज, एस्केलेटर ऊपर नहीं पहुंचे तब तक उतरना नहीं है, और एस्केलेटर ऊपर पहुंचे उसके बाद ही कदम रख के उतरना है। ऐसा मेरे को उन्होंने डिटेल प्रोसेस के साथ समझाया। अब मेरा दूसरा सवाल क्या है कि समझो एस्केलेटर ऊपर के मंजिल में पहुंच गया और आप नीचे रह गए, इसका क्या मतलब है? आगे पैर नहीं रखा, और ऐसा भी हो सकता है कि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, उससे ज्यादा तेजी से आप जाने की ट्राई कर रहे हैं, नीचे गिर गए, आपने हैंडल नहीं पकड़ा, और कुछ। तो देखिए क्या है, पहले जब मैंने पूछा कि एस्केलेटर पर ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको लगा कि क्या आदमी इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, समझो एस्केलेटर ऊपर चला गया और आप नीचे रह गए, तो इसका क्या मतलब है? चढ़े नहीं। देखिए मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। इसका सीधा मतलब ये बनता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। क्योंकि आप सोचिए, पहले तो आपने क्या बोला कि एस्केलेटर में अगले लेवल पे जाने के लिए कुछ नहीं करना है। पता नहीं क्या बकवास सवाल पूछ रहे हैं, आदमी मुंबई से आया, इसको काम धंधा है नहीं, इधर आकर क्या पूछ रहे हैं, राइट? तो पहले तो आपको लगा सरासर क्या है, एस्केलेटर में ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? हैंडल पकड़ के खड़े रहना पड़ता है। लेकिन इतना इजी है, इतना सिंपल है, फिर भी अगर कोई ऊपर नहीं पहुंचा तो इसका मतलब कि बहुत चमत्कारी, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। और इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि एस्केलेटर में ऊपर जाने के लिए टैलेंट नहीं दिखाना होता है, टैलेंट नहीं चाहिए होता है ना उसमें। डज इट नीड टैलेंट? व्हाट डज इट नीड? इट नीड्स व्हाट डज इट नीड? इट जस्ट नीड डिसिप्लिन। You just stand there till the escalator goes up. It needs only discipline, correct? Right? अब भी मैंने आपको हिसाब दिया कि हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी है कि हर 6 साल में तो इंडेक्स ही डबल होता है। तो पैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप बताओ मेरे को? पैसा डालना है, फिर और हैंडरेल पकड़ के खड़े रहना है, खाली इन्वेस्टेड रहना है ना। लेकिन हर 5 साल 6 साल में लोगों का पैसा डबल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो टैलेंट दिखाते हैं, करेक्ट है ना? बहुत टैलेंटेड है ना लोग। देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कल शाम को रायपुर में मैं कुछ लोगों को मिला था, तो उनका सबसे पहला सवाल क्या था पता है? अभी मार्केट सबसे ऊपर के लेवल पे है, तो क्या हमको निकल जाना चाहिए? कितने लोगों को ऐसा मन में दुविधा आती है? अभी मार्केट ऊपर के लेवल पे है, तो क्या हमको निकल जाना चाहिए? तो पहले मैंने उनको पूछा कि अगर मार्केट ऊपर के लेवल पे नहीं होता और नीचे के लेवल पे होता तो आप खुश होते क्या? तभी भी यही सवाल होता कि बाहर जाना चाहिए क्या, राइट? सो क्या है, सवाल तो हमेशा रहते ही है। और दूसरा चीज क्या है, इसलिए मैंने पूछा कि राइट प्लेस राइट टाइम, इज इट ओनली अबाउट लक? तो आप लोग मूवीज देखते होंगे, तो हेरा फेरी नाम का एक आइकॉनिक मूवी है, उसका हेरा फेरी 1, 2, 3 पता नहीं कितना है, जो फर्स्ट आया था उसकी भी बात कर रहा हूँ। इज राइट प्लेस राइट टाइम ओनली अबाउट लक? उसके ऊपर उस मूवी में एक कहावत है, मैं आपको सिचुएशन याद दिलाता हूँ, आपको याद आएगा। अभी पक्का चॉकलेट देने वाला, अगर कोई जवाब देगा। चॉकलेट देने वाला है, क्या देने वाला? गिफ्ट देने वाला। दे नहीं रहा है, खाली देने का धमकी दे रहा है, बार बार बोल रहे देगा लेकिन दे नहीं रहे। अभी ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो अभी देना। सो वो मूवी में एक सिचुएशन आती है जहाँ पे अक्षय कुमार है ना, जो मेन आइकॉनिक मूवी फेमस इज बिकॉज ऑफ परेश रावल, बिकॉज ही इज बाहुबली। सो इन द मूवी देयर इज वन सिचुएशन वेयर अक्षय कुमार टेल्स परेश रावल कि बाबू भैया अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको बहुत पैसा मिलेगा।
दिया उसको बोलते हैं कि मैं नहीं करेगा। तो अक्षय कुमार उसको क्या समझाते हैं? सही समय पे सही जगह पे होना ये केवल लक नहीं है, सही समय पे सही जगह पे पहुंच के कुछ करना भी पड़ता है। उसके बारे में अक्षय कुमार बाबू भैया को क्या डायलॉग बोला था, याद है किसी को? यस सर। लक्ष्मी जी तिलक करने के लिए तैयार है और आप मुंह धो के खड़े हो। हाँ, so does anybody ये गुजराती कहावत है, does anybody understand गुजराती है? Is anybody गुजराती? गुजराती में क्या कहावत है पता है? लक्ष्मी जी तिलक लगावा आवे त्यारे मोगू धोवा न जवाय, ऐसा बोला है। करेक्ट। सो क्या होता है कि हर 6 साल में तो बाजारी पैसा डबल कर देता है, राइट? और अभी अपने को खाली डिसिप्लिन दिखाने का जरूरत है, लेकिन लोग टैलेंट दिखाते हैं। और मार्केट का काम क्या है? टैलेंटेड लोगों को, जो भी मार्केट की आजमाइश करता है उसको मार्केट आउट कर देता है। करेक्ट। सो अभी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए, आप लोगों को फेसबुक पे, ईमेल पे या अपने व्हाट्सएप पे कभी कभी कहीं पे तो किसी ने भेजा होगा ना कि भाई 1980 में 10,000 का विप्रो लेते तो कितना हो जाता, पढ़ा है किसी ने? आपको किसी ने तो भेजा होगा कि इन्फोसिस लेते हैं IPO में तो ऐसा हो जाता है, झुंझुनवाला साहब ने टाइटन लिया 2002 में तो कैसा हो गया, ऐसा सब आपको आता होगा ना। ऐसा किसी को ऐसा मैसेज आपने, सबको आया ऐसा मैसेज? व्हाट्सएप पे आया होगा, फेसबुक में आपके वॉल में किसी ने पेस्ट किया होगा, आपको टैग किया होगा। ऐसा कोई है जिसको ये मैसेज आया ही नहीं कभी? अगर नहीं आया है तो फेसबुक में सही लोगों से दोस्ती करिए, खाली एक दूसरे का फोटो नहीं भेजने का, कुछ काम का मैसेज नहीं आना चाहिए। तो मैं कभी कभी क्या सोचता हूँ मालूम, मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, जैसे अभी मैं यहाँ से घर पे जाऊँगा तो पिताजी मेरे नहीं है, बचपन में चल बसे थे, लेकिन समझोगे मेरी मदर है। मैं यहाँ से बॉम्बे जाऊँगा वापस शाम को, मैं मेरी मदर को पूछूंगा कि मम्मा ये हर जगह पे मैं सुनता हूँ, अब मेरे को पूछने के आपको 1980 में आपके पास 10,000 रुपये नहीं था क्या? पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब एक थप्पड़ मारेगी और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मेरी मम्मी क्या जवाब देगी मेरे को? क्या जवाब देगी? बोलेगी हाँ 1980 में 10,000 नहीं था हमारे पास, ठीक है नहीं था। या तो बोलेगी कि तू क्या बकवास कर रहा है, तभी तो विप्रो तेल बनाता था, हमको क्या पता सॉफ्टवेयर बनाता है, राइट? या शी कैन से कि तू वॉरेन बफेट का बात करता है, 1980 में तो वॉरेन बफेट को कोई नहीं जानता था। तो मैं बोल रहा हूँ 1990 में मिस्टर बफेट की उम्र 60 साल की थी और उनके पास मुश्किल से 1 बिलियन नहीं था। अभी 200 बिलियन है, डोनेशन करने के बाद 150 बिलियन है। लेकिन 1980 में तो उनके ऊपर किसी ने कोई किताब भी नहीं लिखा था। और शेयर बाजार में निवेश करने से आदमी दुनिया का सबसे रईस बन सकता है। या बफेट कौन है, ये ओमेगा फाइनेंशियल का इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी नहीं होता था, कोई एनडीटीवी प्रॉफिट CNBC कुछ नहीं था। तो मेरी मम्मी मेरे को ये सब जवाब देगी, मेरे को मानना पड़ेगा बात सही है कि नहीं है, करेक्ट? तो पिछले 30 साल में तो हर 6 साल में पैसा डबल हुआ है, खाली सेंसेक्स लेके। आप स्टॉक पिकिंग, म्यूचुअल फंड, ये सब का तो बात ही मत पूछो, करेक्ट? तो अगर मैं मेरी मदर को पूछता कि 1980 1990 में आप क्या कर रहे थे, तो जवाब देगी कि हमको क्या पता, कभी किसी को नहीं पता था। अभी मेरा बेटा 4 साल का है, मेरा बेटा 4 साल का है, तो आपको क्या लगता है वो मेरे को क्या हिसाब पूछेगा 30 साल के बाद? कुछ तो पूछेगा ना, करेक्ट? तो मेरे को हिसाब देना पड़ेगा उसको। और अगर हिसाब नहीं जमा तो मेरा बेटा बोलेगा भाई तू तो पूरे गांव में जाके भाषण दे रहा था, तूने क्या उठा लिया? पूछेगा कि नहीं पूछेगा, करेक्ट? अभी आप एग्जाम्पल लो, समझो आप मेरे साथ गिनो, ठीक है? क्या अभी थोड़े समय पहले मेरे को सबने क्या बताया कि हाँ 12% ग्रो होता है तो हर 6 साल में डबल होता है, हिसाब सबको पता है, करेक्ट? लेकिन गिनता नहीं है कोई। 12% पे जो चीज बढ़ती है हर 6 साल में डबल होती है, वो डबल तक ही लोग गिन के रुक जाते हैं। अभी आप मेरे साथ गिनो, मेरा बेटा 4 साल का है, वो 34 साल का होएगा तो वो मेरे से क्या हिसाब पूछेगा, वो गिनो आप मेरे साथ, ठीक है? और मैं ये नहीं मानता हूँ कि अगले 30 साल 12% होएगा। क्यों मालूम है? पिछले 30 साल 12% क्यों हुआ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 6% का ग्रोथ
आने वाले सालों में समझो कि 12% ग्रो नहीं होगा, अपना समझो ग्रोथ 6-7% होगा, लेकिन मेरे को लगता है महंगाई 3-4% बढ़ेगी, 6-7% नहीं बढ़ेगी। तो समझो 10% ग्रो होएगा आने वाले समय में, 12% नहीं होगा, ठीक है। अभी 10% ग्रो होगा तो हर 7 साल में डबल होएगा। अभी आप गिनो मेरे साथ, अभी मेरा बेटा 4 साल का है, ठीक है। वो जब 32-34 साल का होएगा तो क्या हिसाब पूछेगा, आप मेरे साथ गिनो, गिनेंगे सब लोग। अभी समझो कि मेरा एक म्यूचुअल फंड में फोलियो है या मेरे पास कुछ सेविंग है, तो 1 मिनट के लिए अज्यूम करो कि मेरे एक फोलियो में 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। अभी मेरा बेटा 4 साल का है और एक इन्वेस्टमेंट फोलियो में मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। जब भी मेरा बेटा 11 साल का होएगा तो क्या वैल्यू होना चाहिए? बोलो जोर से बोलो, गिनने से याद रहता है। और आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पर मेरे बेटे की बात करने नहीं आया हूँ। नहीं, आप गिनो मेरे साथ, देखो सबको सर ऐसा फास्ट नहीं करने का, सबको समझ में आया, सबको लेके चलने का, करेक्ट। तो 11 साल का होएगा तभी 2 करोड़, 18 साल का होगा तभी 4 करोड़, 25 साल का होगा तभी 8 करोड़, और 32 साल का होगा तभी 16 करोड़, और 34 साल का होगा तभी लगभग 20 से 22 करोड़, करेक्ट। तो अभी एक फोलियो अगर 1 करोड़ है ना, तो 30 साल में 20 से 22 करोड़ का हिसाब मेरा बेटा मेरे से पूछेगा। अभी आपको समझ में आ गया कि मैं मेरे बेटे का बात कर रहा तो आया नहीं है, वो तो मैं उसके लिए मेरे को दूर में आके कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, वो तो मैं घर पे कैलकुलेशन कर सकता है, करेक्ट। और मेरे को जितना मैथ्स आता है मेरे बेटे को उससे ज़्यादा ही मैथ्स आएगा शायद, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, वो तो आईटी स्कूल में पढ़ रहा है, तो शायद मेरे से ज़्यादा ही मैथ्स आएगा। और वो 32 साल रुकेगा भी नहीं, अगले साल से ही पूछना चालू कर देगा, भाई तू क्या चाहता है, करेक्ट। तो आने वाला जनरेशन जो है उसको अपने को हिसाब देना पड़ेगा। और मैंने पहले बोला कि मैं अपने बात करने नहीं आया, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लोगों के लिए रेलिवेंट है। तो पिछले 30 साल में तो यहाँ पे चमत्कार हो गया, लेकिन तभी अपने को पता नहीं था। अभी अपनी आंखें खुल गई है ना, तो अभी अपने को प्लानिंग करना पड़ता है। लेकिन प्लानिंग क्या है इसमें, आप बताइए मेरे को। इसमें खास बात क्या है बताएं? खास बात यह है कि टैलेंट नहीं दिखाने का। वेल्थ बनाने के लिए बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको सबको पता है कि वेल्थ बनाने के लिए टैलेंट नहीं दिखाने का होता है, डिसिप्लिन दिखाना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी वर्ल्ड कप हुआ, अभी सब लोगों को पेन हो रहा है, वर्ल्ड कप हम हार गए। अभी वो हार गए, उसमें आप देखिए क्या हुआ। क्रिकेट का भी यही एग्जाम्पल है, मैं आपको बोलता हूँ कि हार गया उसमें क्या हुआ। पहले तो 10 मैच हम लोग जीत गए, फिर लोग बोलते 11वां मैच हार गए। एक्चुअली 11वां मैच में भी क्या हुआ, पहले तो हमने 241 रन बनाया, फिर उनका बैटिंग आया, तो उनकी बैटिंग आई तभी उनका भी 47 for 3 हो गया था। मोटा मोटी तो हार ही रहे थे लोग, राइट। जब 47 for 3 हो गया, फिर वो ट्रेविस हेड जो था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवा दिया। उसने टैलेंट दिखाया था क्या? जब टफ मैच होता है, आप अगर उस मैच की कमेंट्री सुन रहे थे तो मैच के कमेंट्री में क्या हिदायत दे रहे थे उसको कमेंटेटर या जो भी एक्सपर्ट्स थे, वो क्या सलाह दे रहे थे उसको? क्या बोलते लोग? पिच पे टिके रहो, सिंगल्स लो, स्ट्राइक रोटेट करो, विकेट मत गंवाना, और 50 ओवर खेल लिए तो जीत जाएगी। वो वैसे ही जीते ना, उन्होंने टैलेंट नहीं दिखाया। उसने हम लोगों को 1-1, 2-2 रन लेके विकेट नहीं गंवाया, पिच पे रहा, वो फ्रस्ट्रेट कर दिया इंडिया के बॉलिंग को, राइट। विकेट नहीं गिरा इसलिए जीते ना वो लोग, चौके छक्के मार के नहीं जीते वो लोग। तो मार्केट में पैसा बनाने के लिए भी यही करना पड़ता है, पिच पे टिके रहो, सिंगल्स लो, विकेट मत गंवाओ, और पूरा 50 ओवर खेलो, वही करना पड़ता है। किसका पैसा हर 5-6 साल में डबल होता है? जो 12, 18, 24 साल रहेगा उसका जो रहेगा ना। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का डेटा क्या बताता है कि हर दूसरे साल लोग नया फंड खोज के निकल जाते हैं। ये नहीं चल रहा है, ये जो मैं लिया, फिर ये नहीं चल रहा है, फिर वो नहीं चल रहा है। हर दूसरे साल में नया खोज में निकलते हैं, तो कभी भी आपका 5-6 साल पैसा रहेगा ही नहीं, तो बढ़ेगा कैसे?
हर दूसरे साल में तो लोग नया फंड और नया सेक्टर और नया स्टॉक ढूंढने निकलते हैं, तो कंपाउंडिंग कैसे होएगा? कंपाउंडिंग होने के लिए एक चीज में रहना जरूरी है, करेक्ट? ये खास बात है। अभी क्या हो रहा है, हमारे देश में अमृतकाल की बात चल रही है, करेक्ट? जैसे गवर्नमेंट बोल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये जो बड़े बड़े पावरफुल दिग्गज लोग जब कोई कमेंट करते हैं या कोई बात करते हैं, तो इसका एक तो डिसएडवांटेज रहता है कि इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग जब बोलते हैं तो लोगों को लगता है तो प्रोपेगेंडा है, और ऐसा होता भी है। देखिए बहुत सारी चीज़ें प्रोपेगेंडा हो भी सकती है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये वाकई में गणित के साथ किया गया चीज़ है, और इसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग गणित है, उसको हम लोगों को समझना चाहिए, करेक्ट? फिर समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले मेरे पास 2-3 सवाल और है, तो अभी तुम प्राइस देना पड़ेगा, करेक्ट? तो अभी सबसे मुश्किल सवाल, वो अमृतकाल की बात बाद में करते हैं, उसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है मेरा। सबसे मुश्किल सवाल, अभी हम कौन से साल में हैं? नहीं, ये सवाल इजी है, इसका जवाब आप दे दो। मतलब ऐसा अगर आपको लगता है कि गलत जवाब दिया तो चेयर एक्सप्लोर होकर आप ऊपर हवा में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये कौन से साल में है अभी हम लोग? अरे 2024 है, अगर आपको मेरे को चेक देने का तो 2024 लिखना पड़ेगा। वी आर इन 2024। अभी मेरे को एक चीज बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शेयर बाजार में, इक्विटी के म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? करीब करीब सब लोग ना। ये ना, मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ। एक्चुअली मेरे को पता है कि अगर आप इक्विटी में निवेश नहीं करते तो ये लोग मेरे को नहीं बुलाते, किसी और को भी बुला सकते हैं, लेकिन ये जानने के बावजूद मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ मालूम है? क्योंकि जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, ऐसा मैं सवाल पूछता हूँ ना, तो कितने लोग हाथ उठाते हैं, कितनी जल्दी हाथ उठाते हैं, और पूरा उठाते हैं या आधा उठाते हैं, उससे मेरे को पता चलता है मार्केट का मूड कैसा है। अगर लोग खुश है ना तो हाथ उठाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं हम भूलने की ट्राई कर रहे हैं, तुम याद क्यों दिलाते, हम तो इक्विटी में पैसा ही नहीं डाला भाई, बोलना भी मत, करेक्ट? जैसे एक बड़े अभिनेता है, ये बोलते हैं कि इनका मूवी 1000 करोड़ कलेक्ट कर दिया, लेकिन आप पूछो तो बोलते हैं कि हमने तो नहीं देखा, कौन बोलेगा? ऐसा एक पार्टी है, वो पूरा इलेक्शन जीत गया, लेकिन जाके पूछो बोले कि हमने तो वोट नहीं किया, पता नहीं किसने वोट। जैसे अगर आप सूरत में जाएंगे ना, तो सूरत में लोग बोलते हैं हम पूरा कंप्लीट वेजिटेरियन है, लेकिन रास्ते में निकलोगे तो सारे ठेलों में अंडे और चिकन मिलता है, तो मैं उसको बोला ये सब टूरिस्ट के लिए बनाया गया। तो ये वैसा ही है। कई बार क्या होता है कि लोग बोलते नहीं हम तो इक्विटी में नहीं लगाते, तो समझ जाने का मार्केट खराब है, एक्चुअली पैसा सब लगाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, सबने हाथ ऊपर कर दिया, मतलब ठीक है। तो अगर आपको मैंने पूछा कि आप कौन से साल में हैं, तब तो आपने बोला 2024। लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट के निवेशक हैं और अगर शेयर बाजार आपको समझ में आता है, तो आप सोच के फिर से इसका जवाब दे सकते हैं। कहाँ पे सर? नहीं, हाई नहीं। अभी अब शेयर बाजार में अगर आप सोचते तो कौन से साल में है? शेयर बाजार हाई पे है, क्यों? आप सोच के बताइए मेरे को इसका जवाब। अच्छा, ये मेरे को बताइए 2030 कब आएगा? 2030 कब आएगा? 6 साल के बाद। अभी आपको हिंट मिला मैं क्या पूछ रहा हूँ? देखिए, पहले मैंने क्या पूछा, अभी आप कौन से साल में हैं? अभी आप कौन से साल में पूछा मैंने। फिर आपने मेरे को बोला कि आप सब इक्विटी बाजार में निवेश करते हैं, तो मैंने बोला कि 2030 कभी आएगा बताइए। देखिए, समझने वाली बात क्या है, पता समझने वाली बात क्या है कि आर्थिक व्यवस्था में जो चीजें आगे जाकर हो सकती है या होने वाली है, उसका अनुमान लगा के आज शेयर बाजार चलता है। जैसे इसका मैं आपको सीधा सीधा हिसाब देता हूँ। देखिए, काफी समय से आईटी कंपनियां नहीं चल रही है ना, काफी समय से आईटी की कंपनियां बाजार में नहीं चल रही, और 2 दिन पहले आईटी कंपनियों का पिछले 2 साल का सबसे खराब नतीजे अभी आए। जब खराब नतीजे आए तो शेयर का दाम तो सबका उछलने का, पूरा इंडेक्स 5% ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? जब सबसे खराब नतीजे आए
उसके बाद सारे शेयर के दाम ऊपर क्यों गए? जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड हुआ तो बाजार तो 40% डाउन था और आप सब तो घर के अंदर बैठे थे, आप घर से बाहर निकले, आप रिहा हुए, उसके पहले बाजार फिर से भाग गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वैक्सीन आ गया, तो बाजार को पता हो गया वैक्सीन आ गया मतलब खत्म, राइट? आईटी कंपनियों का जब सबसे खराब परिणाम आया तो मार्केट ऊपर गया। क्यों? बोले हो गया अभी, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था 2024 में है। अगर आपको मेरे को चेक काट के देने गए तो 2024 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन शेयर बाजार है ना, वो हमेशा फ्यूचर को देख के चलता है। जितने लोग इधर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई फाइनेंस प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन है, तो आपने कहीं ना कहीं में पढ़ा होगा, वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। मतलब अगले 1 साल 2 साल, देखिए कोई भी कंपनी है, उसका EPS समझो 20 रुपया, ठीक है? अभी समझो मार्च 24 कंपनी का अनुमान है कि EPS 20 रुपया आएगा। जो कंपनी का अनुमान 20 रुपए का है EPS का, उसका बाजार में भाव कितना चलता है? लगभग कितना हो सकता है? अगर 20 रुपए का EPS है तो शेयर का भाव 20 रुपए होता है क्या? नहीं ना। अंदाजन कितना होता है? देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 20 के आसपास होता है। इसका क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज अगर एक कंपनी का EPS 20 रुपया है तो ऑन एन एवरेज उसका मार्केट वैल्यू 400 होता है। तो उस कंपनी का इस साल का अर्निंग तो खाली 20 रुपया है, तो मार्केट वैल्यू 400 क्यों है बताइए? क्योंकि मार्केट आज के 20 रुपए का अनुमान नहीं लगा रहा है। मार्केट ये सोच रहा है कि ये कंपनी आज 20 रुपए कमा रही है तो अगले साल 24, फिर 30, फिर 35, फिर कभी 30, फिर कभी 28, फिर कभी 50, फिर कभी 60। तो मार्केट में जिस कंपनी का EPS 20 रुपया है उसका वैल्यू 400 क्यों होता है? क्योंकि मार्केट आज के EPS का भाव नहीं देख रहा है, मार्केट हमेशा फ्यूचर का अनुमान करता है। क्यों है? क्योंकि अब लोगों को समझ में आया कि भाई इधर कुछ होने वाला है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमेशा बाजार किधर जाएगा वो फोरकास्ट करते हैं। बाजार में क्या होगा उसको फोरकास्ट करने में लोग बहुत मेहनत लगाते हैं, लेकिन ये 2 वे प्रोसेस है। आप ये मेहनत जरूर करिए समझने का कि बाजार में क्या होगा, लेकिन जो बाजार में हो रहा है उसे ये भी समझिए कि बाजार एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन, इट इज नॉट 1 वे कम्युनिकेशन। यू आर ट्राइंग टू फोरकास्ट द मार्केट, दैट इज फाइन, बट यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट, बिकॉज एवरीबडी इज फोरकास्टिंग द मार्केट। आज बाजार में भाव जो है, आज बाजार में जो भाव है वो भाव कैसे तय होता है? केवल आपसे तय नहीं होता है ना, करोड़ों लोगों के अनुमान से तय होता है। तो आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन बाजार जब ऊपर जा रहा है इसका क्या मतलब है? करोड़ों लोगों को लग रहा है कि इधर कुछ होने वाला है। सो यू फोरकास्ट द मार्केट, बट समटाइम ऑल्सो सिट एंड थिंक व्हाट मार्केट इज टेलिंग यू, राइट? ये 2 वे प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, 1 वे प्रोसेस नहीं है। खाली हमारे अनुमान से कुछ नहीं होता है, ये भी देखना पड़ता है कि बाजार हमको क्या बता रहा है, राइट? तो आज मार्केट में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2030 के एक्सपेक्टेशन पे चल रहा है। इसीलिए आप देखिए कोविड में पहले बाजार गिरा, क्यों? क्योंकि लगा कि ह्यूमन भी हम ही सब अपना डायनासोर बनने वाले हैं, खत्म हो जाएगा ये सब। लेकिन जैसे वैक्सीन आया तो मार्केट पुराने हाई से भी आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर में रहता है, करेक्ट? सो अभी हमको ये समझना चाहिए कि हम लोग का फ्यूचर, हमारे कंट्री का जो भी फ्यूचर है, इसका एक्साइटमेंट क्यों है, ये हमको समझना चाहिए। और क्यों मैंने बोला कि वी आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और हमेशा देखिए हम सब लोग सारे देश अमेरिका भी होते हैं। जनरली स्पीकिंग इफ यू सी, किसी भी कंट्री का मैक्सिमम ग्रोथ किसी एक 10-20 साल के पीरियड में आता है। जैसे अगर आप देखेंगे ना तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, पूरा डेमोक्रेसी वगैरह आया। वर्ल्ड वॉर के पहले इंग्लैंड, फ्रांस, यूरोप, ये सब का जमाना। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका,
अमेरिका के बाद जर्मनी और जापान, उसके बाद चाइना, राइट। तो दुनिया में जो ग्रोथ होती है ना, आर्थिक व्यवस्था में जो इजाफा होता है, वो किसी भी देश का 1, 10, 20, 25 साल का जो समय आता है उसी में होता है। उसके पहले कम होता है, उसके बाद भी कम होता है, करेक्ट। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है, राइट, 2-3 चीजें आप बेसिक ध्यान में रखिए, 2-3 बेसिक थिंग्स यू रिमेंबर। फर्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पे निवेश की चर्चा हो रही है, इन्वेस्टमेंट की चर्चा हो रही है, ठीक है। लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलना चाहिए। ये क्लियर है? रिटर्न किस तरह के निवेश से बनता है? रिटर्न वही बनता है जहां पे ग्रोथ होता है। इज दैट राइट? देखिए, अगर आप कंट्री की बात बाद में करते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। थोड़े समय पहले मैंने बताया कि एक कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर 20 रुपये है, और मैंने आपको ये भी बताया कि आमतौर पे मतलब 20 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, उसका ऑन एन एवरेज मार्केट कैप 400 के आसपास होता है, कभी 200 होता है, कभी 600 होता है। कंज्यूमर कंपनी है कि स्टील कंपनी है, कमोडिटी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो सब अलग बात है। बट आमतौर पे 20 रुपये का ईपीएस मतलब समझो 400 का मार्केट है। अब जिस कंपनी का हर साल अर्निंग पर शेयर 20 ही रहता है, चेंज ही नहीं होता है, तो उसका मार्केट कैप क्या होगा? वही 400 रहेगा, चेंज नहीं होगा। जिस साल कंपनी का अर्निंग 20 से 25 होगा ना, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 था, अब क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 500 होगा। इसीलिए जब कंपनी का मुनाफा या कैश फ्लो बढ़ता है, उसी के एक्सपेक्टेशन में शेयर का दाम बढ़ सकता है। तो ये 2 चीज आप समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज मेड फॉर रिटर्न्स, and returns can be generated only where there is expectation of growth. Is this clear? Clear? Yes, no, yes, no, right? So investment is made for returns, and returns can only be made where there is growth. Simple है ये। अभी कंट्री का बात करते हैं। एक कंट्री में ग्रोथ कैसे आता है? किसी भी कंट्री में जो ग्रोथ है ना, वो हमेशा पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी का फंक्शन होता है। ग्रोथ इज ऑलवेज सम फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग हैं और कितना उत्पादन करते हैं, वो ही हो सकता है। और पॉपुलेशन तो है हमारे पास, लेकिन पॉपुलेशन भी जो है ना, पॉपुलेशन किस तरीके का है उसके बहुत मायने रखता है। 15-20 साल पहले हमारे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे थे। ज्यादातर लोग हमारी कंट्री में 15-20 साल पहले बच्चे थे। आज की तारीख में कैसा है पता है आपको? समझो 145 करोड़ लोग हैं। आप इमेजिन करो कि 145 करोड़ लोगों को लाइन में आप खड़ा कर दो, तो जो बंदा बीच में आएगा ना, सेंटर में, उसकी उम्र 27 साल है। 15 साल पहले कितनी होनी चाहिए थी? बोलो। हाँ, ये एग्जैक्टली 12 नहीं होगा, क्योंकि पिछले 15 साल में बहुत सारे लोग पैदा भी हुए, तो वो तो सब 0, 1 और 2 और 3 और 4 होंगे। तो अभी 27 है ना, तो 15 साल पहले वो 20, 19, 18 ऐसा कुछ होगा, एग्जैक्ट 12 नहीं होगा, करेक्ट। तो अगर थोड़े समय पहले ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे स्कूल या कॉलेज में थे, और अब ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे ग्रेजुएट होने वाले हैं या नौकरी में लगने वाले हैं या अपने यूथ में आने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं इससे कंट्री के प्रोफाइल में क्या अंतर पड़ेगा। सिंपली आप सोचिए, देखिए, जैसे जो बच्चे होते हैं, बच्चे कुछ कंज्यूम नहीं करते, मतलब कि वो खुद नहीं डिसाइड करते क्या कंज्यूम करेंगे, और बच्चे जो होते हैं वो बहुत कम चीजें कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूस कुछ नहीं करता, खुशी प्रोड्यूस करते हैं, बट अदरवाइज बच्चे लोग आर्थिक व्यवस्था में कोई योगदान नहीं है बच्चों का। They consume few things and they don't produce anything. Is that right? अब बुजुर्गों की बात करते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, कई सारे बुजुर्ग हैं, वो बिजनेसमैन हैं, एडवाइजर हैं, डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, कई सारे बुजुर्ग हैं वो काम करते हैं, लेकिन कई सारे बुजुर्ग हैं वो रिटायर हो जाते हैं ना, और ज्यादातर लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो फिर बहुत कम चीजें, उनका कंजम्पशन वो खुद ज्यादा डिसाइड नहीं करते हैं, ज्यादा कंज्यूम भी नहीं करते हैं,
और रिटायर हो जाते हैं उसके बाद कोई प्रोड्यूस भी नहीं करते, आर्थिक व्यवस्था में उनका योगदान फिर नहीं के बराबर होता है। तो समझदारी में बात कौन है कि एक आर्थिक व्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, इसमें सबसे ज्यादा कंज्यूम और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? जो 15-20 साल से लेकर के 60-65 साल के बीच में जो लोग हैं, अपने बच्चे और अपने बुजुर्गों का कंजम्पशन वो लोग तय करते हैं ज्यादातर, और कमाना और जो भी प्रोडक्शन करना वो भी ये लोग ही करते हैं, करेक्ट? तो आप समझ सकते हैं कि अगर ग्रोथ, किसी भी आर्थिक व्यवस्था का जो इजाफा है वो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्टिविटी, इससे होने वाला है। तो पॉपुलेशन उसके वो सबसे ज्यादा किस पे निर्भर है? उसके उम्र पे, एज पे निर्भर है ना। दूसरा चीज आप देखिए, पिछले 5 साल में हमारी गवर्नमेंट जो भी चीजें कर रही है, आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा पता है? सारी चीजें पॉपुलेशन और सही एज का पॉपुलेशन ये तो अब हमारा बन रहा है, लेकिन पिछले 5-10 साल में गवर्नमेंट जो भी कर रही है ना, सारी चीजें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर रही है। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है हमारे पास। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से या आपके वाईफाई और ब्रॉडबैंड से क्या होता है? अगर कोविड आता और हमारे पास 4G नहीं होता तो क्या होता बताइए आप? आपका पूरा कारोबार बंद। सो टेलीकॉम नेटवर्क, फिर आप देखिए रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर आप देखिए लॉजिस्टिक्स, फिर आपके पेमेंट सिस्टम्स। थोड़े साल पहले चेक क्लियर होने में 3 दिन लगते थे, अगर इंटरसिटी दे दिया तो गया, मतलब ब्रह्मांड में कहीं पता नहीं क्या होगा, राइट? अभी आप देखो, अगर मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है केवल, तो मैं आपको पैसा दे सकता हूँ या आपसे पैसा रिसीव कर सकता हूँ। वरना पहले इंग्लिश सीखो। अभी क्या चलन है यहाँ पे? आपको हिंदी आती है ना, तो आप पहले हिंदी में चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर बन जाओ, इंग्लिश बाद में सीखो। इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, करेक्ट? तो जितनी भी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, सब चीजें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर रही है। सही एज का पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव करने की जो प्रयास है, उससे क्या होता है? उससे आर्थिक व्यवस्था में बढ़त होती है, उससे ग्रोथ होता है, करेक्ट? और ग्रोथ होने से ही लोग गरीबी से निकल के आते हैं, करेक्ट? अभी आज की तारीख में आप देखिए, ये जो मैंने आपको अभी आपको समझाया वो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मार्क करके आपको बताता हूँ। सो आपको ये पिरामिड सरीका दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर जो दिख रहा है ये, करेक्ट? ये क्या है पता है आपको? ये पिरामिड आपको ये दिखाता है कि आज की तारीख में इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग 15 से लेकर के 44 की उम्र के बीच में। आप देखिए 44-50 के ऊपर कम लोग हैं और यहाँ पे 10 साल के नीचे कम लोग हैं। अगर आप ये सारे आंकड़े नहीं भी देखते, आप केवल मैं अपने हाथ से आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर ये आज का फिगर है, अगर मैं आपको बोलूं ये फिगर 15 साल पहले कैसा था, तो आप समझ सकते हैं करीब करीब ऐसा होगा। इज इट राइट? अभी आने वाले 15 सालों में ये कैसे हो जाएगा? धीरे धीरे डायमंड के जैसा हो जाएगा। आपको क्या लगता है जापान, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, यूरोप, ये सब कंट्रीज जो है, इनका ये डायग्राम आपको क्या लगता है किस तरीके का दिखता होगा? ऐसा हो गया होगा ना, ओपन हो गया होगा। इसका क्या मतलब है? अभी अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब स्कूल में था बचपन में, तो बचपन में हमको ऐसा बताया जाता था कि अरे यार हमारा तो बहुत पॉपुलेशन है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप चाइना को देखो, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी है, राइट? तो मैं मेरे घर में दूसरा बच्चा था, तो मेरे को सुन के बहुत बुरा लगता था। मेरे को लगता अपने गलती से आ गए, क्या बोल रहे हैं, 1 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में सब बात करते थे। फिर अपने यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोलना चालू किया हम तो हमारे दो, फिर मेरे को कोई राहत मिला कि भाई ठीक है अपना भी कुछ करेक्ट है, राइट? अभी आप सोच के मेरे को बताओ, ये 1 चाइल्ड पॉलिसी है, समझो चाइना का जो बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूँ। एक्चुअली केवल चाइना की बात नहीं है, आमतौर पर दुनिया में होता क्या है
कि जब लोग थोड़े रईस होने लगते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं ना, फिर उनके बच्चे कम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए 50-60 साल पहले मेरे पेरेंट्स के जनरेशन में घर में 6, 7, 8, 10 बच्चे होते थे। करेक्ट, पता नहीं कौन सा कमाऊ निकलेगा। अभी कैसा है, एक बच्चा होता है, उसी को मार मार के बेटा तू ही करेगा जो करेगा। राइट, तो राइटली और रॉन्गली जब लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, तो बच्चे उनके कम होते हैं। और चाइना इसमें अलग है, ये लोग थोड़े पढ़े लिखे भी हो गए, थोड़े रईस भी हो गए, लेकिन ये 45 साल से क्या बोल रहे हैं, एक बच्चा होना चाहिए। तो जो नेचुरल प्रोसेस है उससे ज्यादा इन्होंने अति कर दी। अभी आप लॉजिकली सोचिए, एक इंसान पैदा करने के लिए कम से कम कितने इंसान चाहिए? अरे इसमें ट्रिक क्वेश्चन नहीं है भाई, 2 चाहिए। राइट, 2 चाहिए। अभी आप हर एक 2 इंसान को बोलेंगे कि भाई, किन्हीं 2 इंसान को आप हर एक 2 इंसान को बोलेंगे कि भाई तुम दोनों का मिला के एक ही होएगा। राइट, तो 40-50 साल के बाद क्या होएगा बताओ? हर 2 का 1 होएगा। तो पूरे कंट्री का, क्योंकि एक बच्चे के 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रैंड पेरेंट्स, तो पूरा कंट्री। तो पढ़ाई लिखाई करने से, रिच बनने से जो होना था वो तो होता, लेकिन इन्होंने अलग से और कर दिया कि नहीं भाई तुम कुछ भी है, एक ही बच्चा होगा। तो अभी दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में जितने भी देश जो सबसे रईस है या जो दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देते थे, वो सारे के सारे बुजुर्ग हो चले हैं। करेक्ट, उसका मैं आपको यहाँ पे हिसाब दिखाता हूँ। ये क्या दिखाता है? आप ऊपर का टाइटल देखिए। टाइटल क्या दिखाता है? इंडिया विल अकाउंट फॉर 23% ऑफ वर्किंग एज। जो 20 से 60 का मैंने बोला ना, ऐसा डायग्राम बना के, तो पूरे वर्ल्ड में जो कमाऊ लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया के पास होंगे आने वाले समय में। चाइना में देखिए क्या हुआ है, 2015 के बाद 2010 के बाद ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो देखो किस कदर घट रहा है। आपको दिख रहा है, द लाइन इज एक्चुअली गोइंग डाउन। फिर उसके बाद ये स्काई ब्लू लाइन जो है ना, ये यूरोप का लाइन है। लेकिन यूरोप का भी ये पॉइंट के बाद आप देखिए पूरा लाइन नीचे जा रहा है। फिर ये अमेरिका है, अमेरिका का लाइन नीचे जा रहा है और फिर यहाँ पे जाके स्टेबल हो रहा है। अमेरिका का लाइन स्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपके बच्चे और पोते की वजह से हो रहा है। राइट, अमेरिका का पॉपुलेशन क्यों स्टेबल हो रहा है? आप लोग की वजह से ना, आप ही भेज रहे हो उधर, वो भी इधर के बेस्ट लोग, मतलब आए हैं सब। करेक्ट, इसलिए अमेरिका पावरफुल कंट्री है। हम लोग क्या, हम लोग ऐसे बॉर्डर ओपन है, कोई भी आता है तो लोग क्या करते हैं, नहीं भाई तुम IIT आया मैं तो आ सकते हैं, बाकी सब लोग टूरिस्ट। करेक्ट, लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका, केवल एक ही कंट्री है जिसका, आप देखो यहाँ पे इट इज कंटिन्यूसली, दैट इज इंडिया। द ऑरेंज लाइन इज इंडिया। सो व्हाट इट इज शोइंग इज, एक ही पूरा बड़े कंट्रीज में एक ही है जिसका वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अभी ये एप्पल और टेस्ला और ये लोगों क्या हमसे प्यार नहीं हो गया? प्यार नहीं हुआ है लोगों से, ये लोग अभी समझ में आ गया है ये सब। ये चार्ट मैंने थोड़ी बनाया, पूरी दुनिया में जितने लोग थोड़ा बहुत भी फाइनेंस या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सबके पास ये चार्ट है। करेक्ट, सो अभी उन लोगों को समझ में आ गया कि भाई सबसे बड़ा कंज्यूमर, सबसे ज्यादा कंज्यूमर और सबसे ज्यादा लेबर जो है वो तो इधर ही है। और हम लोग सब जो है ना, देखिए आर्थिक व्यवस्था के बारे में ज्यादा बात करके निवेशकों को फायदा नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमारे कंट्री में जरूर फायदा है। मैं आपको उसका हिसाब समझाता हूँ। देखिए पिछले 15-20 साल में व्यवस्था में सबसे ज्यादा उन्नति हुई है, कौन सा कंट्री है? चाइना। ठीक है, पर आपको पता है, मैंने आपको बोला ना कि 32 साल में हमारा शेयर मार्केट 12% कंपाउंड किया है। आपको पता है चाइना में
पिछले 10-15 साल से शेयर मार्केट का रिटर्न नेगेटिव है। ऐसे कैसे हो गया कि आर्थिक व्यवस्था में इतनी उन्नति है, इतनी प्रगति है, देश इतना रईस हो गया, लेकिन शेयर बाजार में लोगों का पैसा डूबा? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? फ्यूचर नहीं है, गुड आंसर। उसके अलावा लेकिन 15 साल पहले तो फ्यूचर था ना, मार्केट में कभी से लोग का चला ही नहीं। क्यों पता है आपको? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग वी टेक इट, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, इंग्लिश में बोलते हैं वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? किसी चीज को टू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी? आश्वस्त रहना, राइट? हम लोग बहुत सारा चीज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आर्थिक व्यवस्था में जो चीजें हो रही है वो कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में कैप्चर होए, इसके लिए कानून व्यवस्था, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब चाहिए ना। प्राइवेटाइजेशन, फ्री बिजनेस, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, ये सब चाहिए ना। देखिए आर्थिक व्यवस्था में यहाँ पे रोड बन रहे, ब्रिज बन रहे, एयरपोर्ट बन रहे, गाड़ियां बिक रही है, होटल चल रहा है, तो ये आर्थिक व्यवस्था में काम चल रहा है। जो चीजें आर्थिक व्यवस्था में हो रही है वो कंट्री का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके प्रॉफिट एंड लॉस में कैप्चर होने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए ना। अगर थोड़े समय पहले इंडिया में क्या होता था, सारे कारोबार गवर्नमेंट करती थी, करेक्ट? अगर सारे कारोबार गवर्नमेंट करती है, हर काम में गवर्नमेंट टांग अड़ाती है, तो आर्थिक व्यवस्था में जो काम हो रहा है वो कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा ना, गवर्नमेंट के पास जाएगा या गवर्नमेंट के कुछ चमचों के पास जाएगा, ऐसे होगा, करेक्ट? तो आप ध्यान से सोचो कि आर्थिक व्यवस्था में जो चीजें, आज हम लोग यहाँ पे शेयर बाजार में निवेश करने की बात कर रहे हैं और हमारा पैसा बना भी है और बनेगा भी, उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जिसको हम हमारे कंट्री में वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसी बहुत कम कंट्रीज हैं, राइट? तो आर्थिक व्यवस्था में जो चीजें होती है वो कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में कैप्चर होने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। अब इसके बाद कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में जो आ रहा है वो शेयर बाजार में निवेशकों के डीमैट अकाउंट या अकाउंट स्टेटमेंट में पहुंचे, उसके लिए कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री, सेबी, उसके कानून, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके सिस्टम्स, ये चाहिए ना, करेक्ट? समझिए कि आर्थिक व्यवस्था में हर चीज में गवर्नमेंट टांग अड़ाती है तो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में उसका फायदा नहीं पहुंचेगा। अगर सेबी नहीं होगी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं होगी, उसके ब्रोकिंग इंडस्ट्री नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, पेमेंट सिस्टम सही नहीं होगा, ये सब चलाने के लिए अगर कानून नहीं होंगे, कोर्ट नहीं होंगे, जुडिशरी नहीं होगा, तो क्या कंपनियों के पीएनएल से पैसा आपके डीमैट अकाउंट या अकाउंट स्टेटमेंट में पहुंचेगा क्या? नहीं ना। तो ये सब कंट्रीज में नहीं होता है। अमेरिका के बाद इंडिया एक ही इतना बड़ा कंट्री है जहां पे लोग आश्वस्त होंगे ये चर्चा कर सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में जो वो होगा वो कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, और उन कंपनियों का विश्लेषण करके उन चीजों से हम अपने अकाउंट स्टेटमेंट में इजाफा ले सकेंगे। तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जो दुनिया में हर जगह पे नहीं होता है। इसीलिए आप यू आर लकी टू बी इन दिस प्लेस जहाँ पे इतनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, और पूंजीवाद को सक्सेसफुल होने के लिए जनतंत्र होना बहुत जरूरी है। जनतंत्र के बिना अगर पूंजीवाद होएगा ना तो सब सपाचट हो जाएगा, करेक्ट? सो यू आर लकी दैट यू हैव द राइट कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था कितनी अच्छी होगी उसकी हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा लेने के लिए आपके पास जो मैकेनिज्म है ना वो सबसे बड़ी बात है। वो हर कंट्री में एक्चुअली नहीं है, अगर है भी तो इस तरह से चलता नहीं है वो, करेक्ट? सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड एक्चुअली ऑलवेज कीप इन माइंड। अच्छा, अभी ये जो जीडीपी है, जीडीपी का ग्रोथ होगा, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। एट ए सिंपल निचले स्तर पे, एट ए सिंपल लेवल, व्हाट इट ट्रांसलेट्स पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है, मैं परसों अहमदाबाद में था, तो देश के हर भाग में पर कैपिटा इनकम को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, और मैं पर कैपिटा इनकम बोलूंगा तो बेटर है कि आप ही बोले उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय, गुजराती में उसको माथाडीठ आवक बोलते हैं, ऐसा मेरे को सिखाया किसी ने परसों। ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर कंसर्न विद पर कैपिटा इनकम, एक हाउस होल्ड की इनकम या एक व्यक्ति की इनकम किस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि इतना ये सब आर्थिक व्यवस्था का कोई फायदा नहीं है अगर लोगों का फायदा नहीं होगा तो। और इसमें क्या है, अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं पास्ट के एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और किसी भी देश में कितनी उन्नति या प्रगति हो रही है वो समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है, टीवी का एडवर्टाइजमेंट ध्यान से देखो। टीवी में कौन सा एडवर्टाइजमेंट आता है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारी कंट्री और यहाँ के जो लोग हैं ये कितना प्रोग्रेस किए हैं और कितना बदल गए हैं। ठीक है, इसके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक्सक्यूज मी, हमारी कंट्री और कंट्री के लोग कितना बदल गए हैं इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, अभी आप समझो कि 20 साल पहले या 25 साल पहले ये टूथपेस्ट वगैरह का एडवर्टाइजमेंट आता है ना, कोलगेट, डाबर, किसी को याद है 25 साल पहले कोलगेट, डाबर, टूथपेस्ट, डेंटल प्रोडक्ट्स, ये सब चीज का एडवर्टाइजमेंट आता था? तो 25 साल पहले क्या आता था एडवर्टाइजमेंट में, याद है किसी को? लाल रत्न, इनको प्राइस देना चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूँ, वो क्या आता था मालूम है? हाँ, वो होता था, अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं। फिर वो क्या जवाब देता था, क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन यूज करता हूँ। करेक्ट? अच्छा, ये तो पुराना हो गया। अभी मेरे को बताओ, अभी कोलगेट के एडवर्टाइजमेंट में क्या आता है? अभी क्या आता है बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। ये भी आप 5 साल पुराना बोल रहे हैं, लेटेस्ट बताइए, लेटेस्ट। ये प्राइस मेरे को मिलेगा। लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट में क्या आता है पता है आपको? अगर रात को आपने मिठाई खाया तो दूसरी बार ब्रश करना चाहिए। इसका क्या हम 25 साल पहले क्या बोल रहे थे? अरे भाई कोयला और दातुन से निकलो, कम से कम दंत मंजन तो इस्तेमाल करो। अभी कहाँ पे पहुंच गए? और देखिए, ये दूरदर्शन और रेडियो में आता है, ये क्या हॉटस्टार का एडवर्टाइजमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। करेक्ट? 25 साल पहले कोलगेट और डाबर लोगों को एजुकेट कर रहा था कि कोयले और दातुन के बजाय कम से कम दंत मंजन इस्तेमाल करो। अभी वो क्या बोल रहा है? एक बार नहीं 2 बार टूथपेस्ट से ब्रश करो। और फिर बराबर है, आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, कोयला है कि नहीं, गर्लफ्रेंड को मिलने का है तो कूलिंग क्रिस्टल्स वाला यूज करो, दांत में पेन है तो सेंसोडाइन वाला यूज करो, ये आ रहा है ना। बट आपको समझ में आ गया 25 साल में कितना चेंज हो गया? 25 साल में इधर लोग टूथपेस्ट यूज नहीं करते थे, अभी वो क्या बोल रहा है? दिन में 2 बार यूज करो, क्योंकि उसको तो अपना धंधा बढ़ाना है ना भाई। थोड़े दिन में बोलेगा 3 बार यूज करो, फिर बोलेगा चाय पीने के बाद। अब हमने ऐसा रिसर्च किया है कि चाय पीने से दांत खराब होते हैं, तुरंत ब्रश करो, ऐसा बोलेगा। अपने क्या पता है? करेक्ट? 25 साल पहले टीवी में मोटर कार का एडवर्टाइजमेंट आता था, तो कौन सी कार का एडवर्टाइजमेंट आता था? शाहरुख खान का एडवर्टाइजमेंट आता था, सैंट्रो। अभी किसका एडवर्टाइजमेंट आता है? सैंट्रो का तो अभी कीमत तक 3 लाख हो गया। अभी जिस किसी भी गाड़ी का टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, उस गाड़ी का कीमत कितना होता है? महिंद्रा थार का एडवर्टाइजमेंट आता है 18 लाख, XUV 700 30 लाख। ऐसा नहीं है कि लोग 3 लाख की गाड़ी नहीं खरीदते, लेकिन अभी हम लोग कहाँ पे पहुंच गए? 3 लाख का गाड़ी तो लोग खरीदते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट किसका कर रहे हैं कि भाई जिसने 20 साल पहले हमारे से 3 लाख का गाड़ी खरीदा था, वो आज हमारे से 20 लाख का गाड़ी खरीदेगा। करेक्ट? आपको पता है हमारे देश में, आप अनुमान लगाओ, हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो साल में कम से कम 1 बार फ्लाइट लेते हैं कहीं ना कहीं का? आपका क्या अनुमान है? कितने लोग ऐसे हैं जो साल में 1 बार हवाई जहाज में बैठ के कहीं कहीं जाते हैं? कितने लोग हैं बताओ? 3.25 करोड़ लोग।
कितने लोग ऐसे जो म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं? लेकिन आप नहीं टोटल, ये तो ओमेगा का उपलब्धि है, उसका बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश का बात कर रहा हूँ। 4 करोड़ 4 करोड़। आपको पता है म्यूचुअल फंड में आज कितना पैसा लगा है लोगों का? 50 लाख करोड़। अच्छा 50 लाख करोड़ अभी हो तो आपने अखबार में शायद पढ़ा होगा। 10 साल पहले कितना था बताओ मेरे को? 7 लाख करोड़, ओनली 7 लाख करोड़। अभी कितना है? 50 लाख करोड़। और जो मैंने बोला ना 4 करोड़ लोगों का SIP चल रहा है, वो 10 साल पहले 75 लाख था खाली, 75 lakhs, इट इज 4 करोड़। करेक्ट। सो अभी मैं आपको और एक एग्जाम्पल, जैसे IPOs आ रहे हैं ना, IPOs, तो पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या IPO आए। फिर फुटवेयर, क्लोथ्स, रिटेलिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इसके IPO आए। सेव, भुजिया, पोटैटो चिप्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब के IPO आए। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक्स, ये IPO आए। ये सब पिछले 5 साल में क्यों आए? 20 साल पहले क्यों नहीं आए? ये डॉक्टर लाल पैथलैब, ये मान्यवर, मैनकाइंड फार्मा, HDFC लाइफ, ये सब तो 20 साल से है ना इधर। सबका IPO पिछले 5 साल में ही क्यों आया? जब गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा अमृत काल आने वाला है, तो अगले 20 साल ही क्यों बोलते हैं? अगले 100 साल क्यों नहीं बोलते हैं? या पिछले 20 साल क्यों नहीं बोलते हैं? अभी का 20 साल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको एक सिंपल क्वेश्चन में पूछता हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरा उम्र है 47 ईयर्स, मेरे को 57 ईयर्स होने में कितने साल लगेंगे बताइए? 10 ही लगेगा, कम ज्यादा नहीं? थोड़ा पहले नहीं हो सकता है, बाद में भी नहीं होगा, उसी समय में होगा ना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, ये जो डायग्राम है, ये 15 साल के बाद कैसा होएगा? 15 साल पहले कैसा था? ऐसा होगा, ठीक है। 15 साल पहले, 15 साल के बाद कैसा होएगा? खुलने लगेगा, राइट। तो जिस समय किसी कंट्री का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, वो तो किन्हीं 10-20 साल रहेगा ना। हम सब तो अमेरिका नहीं है ना, राइट। 2 चाहिए। अभी आप हर एक 2 इंसान को बोलेंगे कि भाई, किन्हीं 2 इंसान को आप हर एक 2 इंसान को बोलेंगे कि भाई तुम दोनों का मिला के एक ही होएगा, राइट। तो 40-50 साल के बाद क्या होएगा बताओ? हर 2 का 1 होएगा। तो पूरे कंट्री का, क्योंकि एक बच्चे के 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो पूरा कंट्री। तो पढ़ाई लिखाई करने से, रिच बनने से जो होना था वो तो होता, लेकिन इन्होंने अलग से और कर दिया कि नहीं भाई तुम कुछ भी है, एक ही बच्चा होगा। तो अभी दुनिया में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में जितने भी देश जो सबसे रईस है, या जो दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देते थे, वो सारे के सारे बुजुर्ग हो चले हैं, करेक्ट। उसका मैं आपको यहाँ पे हिसाब दिखाता हूँ। ये क्या दिखाता है? आप ऊपर का टाइटल देखिए। टाइटल क्या दिखाता है? इंडिया विल अकाउंट फॉर 23% ऑफ वर्किंग एज। जो 20 से 60 का मैंने बोला ना, ऐसा डायग्राम बना के, तो पूरे वर्ल्ड में जो कमाऊ लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया के पास होंगे आने वाले समय में। चाइना में देखिए क्या हुआ है 2015 के बाद, 2010 के बाद ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो देखो किस कदर घट रहा है। आपको दिख रहा है? द लाइन इज एक्चुअली गोइंग डाउन। फिर उसके बाद ये स्काई ब्लू लाइन जो है ना, ये यूरोप का लाइन है। यूरोप का भी ये पॉइंट के बाद अब देखिए पूरा लाइन नीचे जा रहा है। फिर ये अमेरिका है, अमेरिका का लाइन नीचे जा रहा है और फिर यहाँ पे जाके स्टेबल हो रहा है। अमेरिका का लाइन स्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपके
बच्चे और पोते की वजह से हो रहा है, राइट? अमेरिका का पॉपुलेशन क्यों स्टेबल हो रहा है? आप लोग की वजह से ना, आप ही भेज रहे हो उधर, वो भी इधर के बेस्ट लोग, मतलब IIT आए हैं सब, करेक्ट? इसलिए अमेरिका पावरफुल कंट्री है। हम लोग क्या, हम लोग ऐसे ही बॉर्डर ओपन है, कोई भी आता है तो लोग क्या करते हैं, नहीं भाई तुम IIT आए, मैं तो आ सकते हैं, बाकी सब लोग टूरिस्ट, करेक्ट? लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका, केवल एक ही कंट्री है जिसका, देखो यहाँ पे इट इज कंटिन्यूसली, दैट इज इंडिया। द ऑरेंज लाइन इज इंडिया। सो व्हाट इट इज शोइंग इज, एक ही पूरा बड़े कंट्रीज में एक ही है जिसका वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अभी एप्पल और टेस्ला और ये लोग क्या हमसे प्यार नहीं हो गए, प्यार नहीं हुआ है हमारे से, ये लोग अभी समझ में आ गया है ये सब। ये चार्ट मैंने थोड़ी बनाया, पूरी दुनिया में जितने लोग थोड़ा बहुत भी फाइनेंस या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सबके पास ये चार्ट है, करेक्ट? सो अभी उन लोगों को समझ में आ गया कि भाई सबसे बड़ा कंज्यूमर, सबसे ज्यादा कंज्यूमर और सबसे ज्यादा लेबर जो है वो तो इधर ही है। और हम लोग सब जो है ना, देखिए आर्थिक व्यवस्था के बारे में ज्यादा बात करके निवेशकों को फायदा नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमारे कंट्री में जरूर फायदा है। मैं आपको उसका हिसाब समझाता हूँ। देखिए पिछले 15-20 साल में व्यवस्था में सबसे ज्यादा उन्नति हुई है, कौन सा कंट्री है? चाइना, ठीक है। पर आपको पता है, मैंने आपको बोला ना कि 32 साल में हमारा शेयर मार्केट 12% कंपाउंड किया है। आपको पता है चाइना में पिछले 10-15 साल से शेयर मार्केट का रिटर्न नेगेटिव है। ऐसे कैसे हो गया कि आर्थिक व्यवस्था में इतनी उन्नति है, इतनी प्रगति है, देश इतना रईस हो गया, लेकिन शेयर बाजार में लोगों का पैसा डूबा? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? फ्यूचर नहीं है, गुड आंसर। उसके अलावा, लेकिन 15 साल पहले तो फ्यूचर था ना, मार्केट में कभी से वो लोग का चला ही नहीं। क्यों पता है आपको? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग, वी टेक इट, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, इंग्लिश में बोलते हैं वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? किसी चीज को, टू टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी? आश्वस्त रहना, राइट? हम लोग बहुत सारा चीज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आर्थिक व्यवस्था में जो चीजें हो रही है वो कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में कैप्चर होए, इसके लिए कानून व्यवस्था, गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब चाहिए ना। प्राइवेटाइजेशन, फ्री बिजनेस, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, ये सब चाहिए ना। देखिए आर्थिक व्यवस्था में यहाँ पे रोड बन रहे, ब्रिज बन रहे, एयरपोर्ट बन रहे, गाड़ियां बिक रही है, होटल चल रहा है, तो ये आर्थिक व्यवस्था में काम चल रहा है। जो चीजें आर्थिक व्यवस्था में हो रही है वो कंट्री का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके प्रॉफिट एंड लॉस में कैप्चर होने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए ना। अगर थोड़े समय पहले इंडिया में क्या होता था, सारे कारोबार गवर्नमेंट करती थी, करेक्ट? अगर सारे कारोबार गवर्नमेंट करती है, हर काम में गवर्नमेंट टांग अड़ाती है, तो आर्थिक व्यवस्था में जो काम हो रहा है वो कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा ना, गवर्नमेंट के पास जाएगा या गवर्नमेंट के कुछ चमचों के पास जाएगा, ऐसे होगा, करेक्ट? तो आप ध्यान से सोचो कि आर्थिक व्यवस्था में जो चीजें, आज हम लोग यहाँ पे शेयर बाजार में निवेश करने की बात कर रहे हैं और हमारा पैसा बना भी है और बनेगा भी, उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जिसको हम हमारे कंट्री में वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसी बहुत कम कंट्रीज है, राइट? तो आर्थिक व्यवस्था में जो चीजें होती है वो कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में कैप्चर होने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। अब इसके बाद कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में जो आ रहा है वो शेयर बाजार में निवेशकों के डीमैट अकाउंट या अकाउंट स्टेटमेंट में पहुंचे, उसके लिए कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री, सेबी, उसके कानून, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके सिस्टम्स, ये चाहिए ना, करेक्ट? समझिए कि आर्थिक व्यवस्था में हर चीज में गवर्नमेंट टांग अड़ाती है तो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में उसका फायदा नहीं पहुंचेगा। अगर सेबी नहीं होगी
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं होगी, उसके ब्रोकिंग इंडस्ट्री नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, पेमेंट सिस्टम सही नहीं होगा, ये सब चलाने के लिए अगर कानून नहीं होंगे, कोर्ट नहीं होंगे, जुडिशरी नहीं होगा, तो क्या कंपनियों के P&L से पैसा आपके डीमैट अकाउंट या अकाउंट स्टेटमेंट में पहुंचेगा क्या? नहीं ना। तो ये सब कंट्रीज में नहीं होता है। अमेरिका के बाद इंडिया एक ही इतना बड़ा कंट्री है जहां पे लोग आश्वस्त होंगे ये चर्चा कर सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में जो वो होगा वो कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा, और उन कंपनियों का विश्लेषण करके उन चीजों से हम अपने अकाउंट स्टेटमेंट में इजाफा ले सकेंगे। तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जो दुनिया में हर जगह पे नहीं होता है। इसीलिए आप यू आर लकी टू बी इन दिस प्लेस जहाँ पे इतनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, और पूंजीवाद को सक्सेसफुल होने के लिए जनतंत्र होना बहुत जरूरी है। जनतंत्र के बिना अगर पूंजीवाद होएगा ना तो सब सफाचट हो जाएगा। करेक्ट? सो यू आर लकी दैट यू हैव द राइट कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था कितनी अच्छी होगी उसकी हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा लेने के लिए आपके पास जो मैकेनिज्म है ना, वो सबसे बड़ी बात है। वो हर कंट्री में एक्चुअली नहीं है, अगर है भी तो इस तरह से चलता नहीं है वो। करेक्ट? सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड एक्चुअली ऑलवेज कीप इन माइंड। अच्छा, अभी ये जो जीडीपी है, जीडीपी का ग्रोथ होगा, ये सब बड़ी बड़ी बात है। एट ए सिंपल निचले स्तर पे, एट ए सिंपल लेवल, व्हाट इट ट्रांसलेट्स पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? मैं परसों अहमदाबाद में था, तो देश के हर भाग में पर कैपिटा इनकम को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, और मैं पर कैपिटा इनकम बोलूंगा तो बेटर है कि आप ही बोले उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय, गुजराती में उसको माथादीठ आवक बोलते हैं, ऐसा मेरे को सिखाया किसी ने परसों। ठीक है? सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर कंसर्न्ड विद, पर कैपिटा इनकम, एक हाउस होल्ड की इनकम या एक व्यक्ति की इनकम किस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि इतना ये सब आर्थिक व्यवस्था का कोई फायदा नहीं है अगर लोगों का फायदा नहीं होगा तो। और इसमें क्या है, अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं पास्ट के एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और किसी भी देश में कितनी उन्नति या प्रगति हो रही है वो समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? टीवी का एडवर्टाइजमेंट ध्यान से देखो। टीवी में कौन सा एडवर्टाइजमेंट आता है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारी कंट्री और यहाँ के जो लोग हैं ये कितना प्रोग्रेस किए और कितना बदल गए हैं। ठीक है? इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्सक्यूज मी, हमारी कंट्री और कंट्री के लोग कितना बदल गए हैं इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है? अभी आप समझो कि 20 साल पहले या 25 साल पहले ये टूथपेस्ट वगैरह का एडवर्टाइजमेंट आता है ना, कोलगेट, डाबर, किसी को याद है 25 साल पहले कोलगेट, डाबर, टूथपेस्ट, डेंटल प्रोडक्ट्स, ये सब चीज का एडवर्टाइजमेंट आता था? तो 25 साल पहले क्या आता था एडवर्टाइजमेंट में, याद है किसी को? लाल रत्न, इनको प्राइस देना चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूँ, वो क्या आता था मालूम है? हाँ, वो होता था, अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं। फिर वो क्या जवाब देता था? क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन यूज करता हूँ। करेक्ट? अच्छा, ये तो पुराना हो गया। अभी मेरे को बताओ, अभी कोलगेट के एडवर्टाइजमेंट में क्या आता है? अभी क्या आता है बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। ये भी आप 5 साल पुराना बोल रहे हैं, लेटेस्ट बताइए, लेटेस्ट। नहीं, ये प्राइस मेरे को मिलेगा। लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट में क्या आता है पता है आपको? अगर रात को आपने मिठाई खाया तो दूसरी बार ब्रश करना चाहिए। इसका क्या हम 25 साल पहले क्या बोल रहे थे? अरे भाई कोयला और दातुन से निकलो, कम से कम दंत मंजन तो इस्तेमाल करो। अभी कहाँ पे पहुंच गए? और देखिए, ये दूरदर्शन और रेडियो में आता है, ये क्या है, हॉटस्टार का एडवर्टाइजमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। करेक्ट? 25 साल पहले कोलगेट और डाबर लोगों को एजुकेट कर रहा था कि कोयले और दातुन के बजाय कम से कम दंत मंजन इस्तेमाल करो। अभी वो क्या बोल रहा है? एक बार नहीं 2 बार टूथपेस्ट से ब्रश करो। और फिर
फिर बराबर है, आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, कोयला है कि नहीं, गर्लफ्रेंड को मिलने गए तो कूलिंग क्रिस्टल्स वाला यूज करो, दांत में पेन है तो सेंसोडाइन वाला यूज करो, ये आ रहा है ना। बट आपको समझ में आ गया 25 साल में कितना चेंज हो गया। 25 साल में इधर लोग टूथपेस्ट यूज नहीं करते थे, अभी वो क्या बोल रहे हैं दिन में 2 बार यूज करो, क्योंकि उसको तो अपना धंधा बढ़ाना है ना भाई। थोड़े दिन में बोलेगा 3 बार यूज करो, फिर बोलेगा चाय पीने के बाद। अब हमने ऐसा रिसर्च किया है कि चाय पीने से दांत खराब होते हैं, तुरंत ब्रश करो, ऐसा बोलेगा, अपने क्या पता है। करेक्ट। 25 साल पहले टीवी में मोटर कार का एडवर्टाइजमेंट आता था, तो कौन सी कार का एडवर्टाइजमेंट आता था? शाहरुख खान का एडवर्टाइजमेंट आता था, सैंट्रो। अभी किसका एडवर्टाइजमेंट आता है? सैंट्रो का तो अभी कीमत तक 3 लाख हो गया। अभी जिस किसी भी गाड़ी का टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, उस गाड़ी का कीमत कितना होता है? महिंद्रा थार का एडवर्टाइजमेंट आता है 18 लाख, XUV 700 30 लाख। ऐसा नहीं है कि लोग 3 लाख की गाड़ी नहीं खरीदते, लेकिन अभी हम लोग कहां पे पहुंच गए? 3 लाख का गाड़ी तो लोग खरीदते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट किसका कर रहे हैं कि भाई जिसने 20 साल पहले हमारे से 3 लाख का गाड़ी खरीदा था, वो आज हमारे से 20 लाख का गाड़ी खरीदेगा। करेक्ट। आपको पता है हमारे देश में, आप अनुमान लगाओ हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो साल में कम से कम 1 बार फ्लाइट लेते हैं कहीं ना कहीं का? आपका क्या अनुमान है, कितने लोग ऐसे हैं जो साल में 1 बार हवाई जहाज में बैठ के कहीं कहीं जाते हैं? कितने लोग हैं बताओ? 3.25 करोड़ लोग, 3.25 करोड़। ओके। कितने लोग ऐसे जो म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं, टोटल। ये तो ओमेगा का उपलब्धि है, उसका बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश का बात कर रहा हूँ। 4 करोड़, 4 करोड़। आपको पता है म्यूचुअल फंड में आज कितना पैसा लगा है लोगों का? 50 लाख करोड़। अच्छा, 50 लाख करोड़ अभी है, वो तो आपने अखबार में शायद पढ़ा होगा। 10 साल पहले कितना था बताओ मेरे को? 7 लाख करोड़, ओनली 7 लाख करोड़। अभी कितना है? 50 लाख करोड़। और जो मैंने बोला ना 4 करोड़ लोगों का SIP चल रहा है, वो 10 साल पहले 75 लाख था खाली, 75 lakhs। इट इज 4 करोड़। करेक्ट। सो अभी मैं आपको और एक एग्जाम्पल, जैसे IPOs आ रहे हैं ना, IPOs, तो पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या IPO आए। फिर फुटवेयर, क्लोथ्स, रिटेलिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इसके IPO आए। सेव, भुजिया, पोटैटो चिप्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब क्या IPO आए। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक्स, ये IPO आए। ये सब पिछले 5 साल में क्यों आए? 20 साल पहले क्यों लिया है? ये डॉक्टर लाल पैथलैब, ये मान्यवर, मैनकाइंड फार्मा, HDFC लाइफ, ये सब तो 20 साल से है ना इधर। सबका IPO पिछले 5 साल में ही क्यों आया? जब गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा अमृत काल आने वाला है, तो अगले 20 साल क्यों बोलते हैं? अगले 100 साल क्यों नहीं बोलते हैं? या पिछले 20 साल क्यों नहीं बोलते हैं? अभी का 20 साल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको एक सिंपल क्वेश्चन में पूछना, अभी ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरा उम्र है 47 ईयर्स, मेरे को 57 ईयर्स होने में कितने साल लगेंगे बताइए? 10 ही लगेगा, कम ज्यादा नहीं। थोड़ा पहले नहीं हो सकता है, बाद में भी नहीं होगा, उसी समय में होगा ना। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, ये जो डायग्राम है, ये 15 साल के बाद कैसा होएगा? 15 साल पहले कैसा था? ऐसा था, ठीक है। 15 साल पहले, 15 साल के बाद कैसा होएगा? खुलने लगेगा, राइट। तो जिस समय किसी कंट्री का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, वो तो किन्हीं 10-20 साल रहेगा ना। हम सब तो अमेरिका नहीं है ना, अमेरिका अलग है, वो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडिया, चाइना, हर कंट्री के बेस्ट लोगों को लाके पकड़ के रखा है।
दुनिया भर में करेंसी चलता है डॉलर। सब लोगों को अमेरिका जाना है पढ़ाई करने के लिए, और सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इन्वेस्टमेंट, यूनिवर्सिटी के ग्रांट, हर तरीके का जो भी डिस्कवरी और इन्वेंशन करना है वो सब अमेरिका में होता है। तो हम लोग सब लोग तो अमेरिका नहीं है ना कि हमारा 50 साल तक तेज, ऐसा हम बन सकते हैं, होपफुली बनेंगे शायद, क्योंकि मैंने बोला ना कि डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको साइड पे रखते हैं। 50 साल का बात नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन हर देश का कोई ना कोई 20 साल में क्यों ग्रोथ होता है, कोई ना कोई 20 साल में तेजी क्यों आता है? क्योंकि जब पॉपुलेशन ऐसा होता है ना तभी तेजी आता है, राइट? क्योंकि थोड़े समय बाद, अभी यहां पे मीडियन एज इज 27, आफ्टर सम टाइम द मीडियन एज विल बी 47, देन वी विल बी अ, होपफुली विल बी रिच कंट्री बट विल बी ओल्ड कंट्री, करेक्ट? हाउ टू रिमेन रिच एंड यंग फॉर एवर, दैट इज अमेरिका, वो अलग चीज है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज they either become old even before they become rich, or they become rich and old like Japan, right? So it is some combination of age and prosperity. There are many countries which become old and they are still not rich. There are many countries which are young and poor like Africa, but there are very few countries which have the opportunity to be old and rich. Correct? And hopefully we will become rich before we become old. जैसे अभी चाइना के बारे में लोग क्या बोलते हैं? They will become old but middle class. अमेरिका कैसा है? People are becoming old but they are rich, and they will ensure that they again become young by importing from outside. Correct? तो किसी भी कंट्री का 15-20-25 साल का जो समय आता है ना, उसी में डिसाइड होता है कि ये रिच होएगा कि नहीं और कितना रिच होएगा। और अभी हम लोग जो है ना 15 साल में वी हैव गॉन फ्रॉम बीइंग पुअर कंट्री टू लोअर मिडिल क्लास। आने वाले 10-15 साल में हम लोग कम से कम मिडिल क्लास टू एफ्लुएंट उतना शायद हो जाएगा। और दुनिया भर में ऐसा जो भी रिसर्च हुआ है ना, वो ये बताता है कि जब एक देश के लोग गरीबी से मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ जब प्रोग्रेस करते हैं ना, आप सोच के मेरे को बताइए, व्हेन पीपल गो फ्रॉम पॉवर्टी टू लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास, जब ये चेंज होता है तो लोगों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है, आप मेरे को बताइए। व्हेन पीपल बिकम मोर एफ्लुएंट फ्रॉम पॉवर्टी टू मिडिल क्लास, व्हाट इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ पीपल? सबसे पहले लोग क्या करना चाहते हैं? सोच के बताइए। सॉरी, घर खरीदना होता है। व्हाट एल्स? Investment. See, investment, house, car, all are correct. But I'll tell you on a philosophical level, fundamentally, on a principle basis, people want to look better. They want to live better. And they want to plan for their future. अब आपको समझ में आया कि पिछले 5 साल में ही इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, क्लोथिंग, ये सब सेक्टर क्यों चल पड़ा पिछले 5 साल पहले, और 15 साल पहले क्यों नहीं चला? क्योंकि 15 साल पहले तो हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दंत मंजन यूज करो, तो कैसे होएगा? 15 साल पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता था कि कल का रोटी किधर से आएगा, तो इंश्योरेंस कैसे खरीदेगा? वो जिसका फ्यूचर ही नहीं है वो इंश्योरेंस कैसे खरीदेगा? जब किसी को अपना फ्यूचर दिखेगा तो वो इंश्योरेंस खरीदेगा ना। जब फ्यूचर है तो कुछ इंश्योर करने के लिए है ना भाई, कल का रोटी किधर से आएगा वही नहीं पता है तो वो थोड़ी SIP करेगा, राइट? तो इसीलिए हम लोग तो 25 साल से बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, लेकिन तब लोगों के पास पैसा ही नहीं था, और जो पैसा था भी
तो गवर्नमेंट ही पीपीएफ में 12% दे देती थी, फिर हमारा क्या काम था? करेक्ट? सो अगर आप ये समझेंगे कि पिछले 15-20 साल में कितना चेंज हुआ है, तब आपको समझ में आएगा कि आने वाले 10 साल में कितना और चेंज हो सकता है। राइट? अभी आप सब समझ सकते हैं कि टूथपेस्ट तो छोड़ दो, इसीलिए क्या एडवर्टाइजमेंट आएगा अगले 10-15 साल टीवी में और आपके ओटीटी में और आपके फोन में, डिजिटल मार्केटिंग में। तो वही सब आएगा। करेक्ट? क्योंकि ऐसा दुनिया भर में इसके ऊपर काफी रिसर्च किया गया है कि जब लोग थोड़ा प्रॉस्पेरिटी आती है ना, उसके बाद ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, ये सब चलने लगता है। करेक्ट? तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि कितना चेंज होगा, और जो आने वाले 10 साल में चेंज होगा ना, वो पोस्टपोन या प्रीपोन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग तो अपने एक स्पीड से ही 1 साल निकलता है ना। मतलब इफ वी वांट टू गो वंस अराउंड द सन, इट टेक्स 1 year, you cannot go faster and you will never go slow, so that is what it will take। और इसलिए मैंने आपको 20-30 साल में जो हुआ है वो तो आपके सामने, आंखों के सामने हुआ है। उसका शायद कुछ लोगों ने फायदा लिया होगा, कुछ लोगों ने फायदा नहीं लिया होगा, लेकिन आने वाले 15 साल में अगर फायदा नहीं लेंगे ना, तो मतलब आप बहुत टैलेंटेड है। टैलेंट नहीं दिखाने का, जो चीज डिसिप्लिन से होता है ना, उसमें टैलेंट नहीं दिखाने का। और मेरा क्या लर्निंग है कि सबसे बड़ा टैलेंट कौन सा होता है पता है दुनिया में? डिसिप्लिन। अगर आप बहुत टैलेंटेड है लेकिन दिन में 12 बजे तक नींद नहीं खुलता है ना, तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं है। और आप में कोई टैलेंट नहीं है लेकिन आप सुबह 5 बजे उठ के काम में लग जाते हैं ना, तो दुनिया भर का टैलेंट आ जाएगा आपके पास। सो जो चीज में डिसिप्लिन से काम होता है वहां पे टैलेंट नहीं दिखाने का। और लोग इन्वेस्टमेंट में बहुत टैलेंट दिखाते हैं, इसीलिए एस्केलेटर बार बार ऊपर चले जाता है, या तो लोग आधे रास्ते में उतर जाते हैं या चढ़ते ही नहीं है। और मार्केट का काम क्या है? मार्केट का यही काम है कि लोगों को एस्केलेटर से, देखिए जैसे आप रोलर कोस्टर में गए कभी, आप अम्यूजमेंट पार्क में, थीम पार्क में रोलर कोस्टर में गए होंगे ना, तो रोलर कोस्टर में क्या होता है पता है आपको? जब रोलर कोस्टर ऊपर जा रहा होता है ना, तो आपको बहुत खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है। जब आप मैक्सिमम एक्साइटमेंट में होते हैं ना, सबसे ऊपर के पॉइंट में, जब आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, सबसे ऊपर का पॉइंट है, हवा चल रही है, पूरी दुनिया आपको दिख रही है, उसके बाद क्या होता है? नीचे जाता है। जब नीचे जा रहा होता है, जब एकदम नीचे के पॉइंट पे आता है, जब आप अपने साथ बैठे हुए उसको कोस रहे होते हैं, भाई मैं तो तेरे को पहले बोला था मेरे को इसमें नहीं आने का है, क्यों लेके आया? हम लोग घूमने फिरने आते हैं तो डरने के लिए थोड़ी आते हैं। जब आप बाजू वाले को कोस रहे होते हैं ना, वहां से उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो फिर ऊपर जाता है। ऐसा रोलर कोस्टर में होता है कि नहीं होता मेरे को नहीं पता, मार्केट में ऐसे ही होता है। मार्केट में क्या होता है? जब भी आपको लगता है ना कि अपुनिज भगवान है, और जब मार्केट में आपको लगता है ना कि अभी तो दुनिया खत्म होने वाला है बॉस, वहां से तो ये सब नहीं करने का। एक्चुअली क्या है, जब सबको लगता है ना दुनिया खत्म होने वाला है, तभी आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि हम लोग डायनासोर नहीं है। और जब इस सबको लगता है ना, और जब इस सबको लगता है ना कि भाई सारे पेड़ आसमान को छूने वाले हैं, जैसे अगर आपको सबको कन्विंस हो गया ना कि अभी अमृतकाल आने वाला है, तो भी मन में इतना खिड़की खुला रखना कि किसी भी लेवल से मार्केट 10-15% गिर सकता है। करेक्ट? तो जब लगता है ना दुनिया खत्म होने वाली है, तभी इतना खिड़की खुला होना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है। और जब सब बोलते हैं ना कि अभी तो मतलब 50,000 हो जाएगा निफ्टी, तो ऐसा खिड़की खुला होना चाहिए कि भाई एक लाइन में नहीं होता है। राइट? तो 2-3 चीज आप ध्यान में रखो। मार्केट सबसे हाई लेवल पे है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। हर 18 से 20 महीने में मार्केट नया हाई बनाता है। हर साल मार्केट एक बार अपने ऊपर के पॉइंट से 15% गिरता है, और हर साल मार्केट अपने नीचे के पॉइंट से 15-20% ऊपर
उठता भी है। देखिए 30 साल जैसे लंबे अरसे में तो 12% कंपाउंडेड है, ठीक है, लंबे अरसे में तो इंडेक्स 12% कंपाउंडेड है, लेकिन 12% कंपाउंडेड कैसे है? हर 18 से 20 महीने में एक बार न्यू हाई बनता है, हर साल ऊपर के लेवल से 15% गिरता है और हर साल नीचे के लेवल से 15% ऊपर उठता है। ये मार्केट में जैसे टेक्नोलॉजी में बोलते हैं इट्स अ फीचर नॉट अ बग। जैसे एक बार मैं बॉम्बे से नासिक ड्राइव कर रहा था, तो कभी कभी आप हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो आपको लगता है ना फास्ट चलाना चाहिए, तो जब मैं जवान था गाड़ी फास्ट चलाता था, नहीं अभी नहीं है ऐसा, खाली दिखता है आपको। तो फास्ट चलाते हैं ना गाड़ी, तो समझो सामने कोई ट्रक आ गया, वो ट्रक स्लो चल रहा है, तो मैं हॉर्न बजा रहा था, कभी लेफ्ट से ओवरटेक करूं, कभी राइट से ओवरटेक करूं, बहुत बार हॉर्न बजाया, फिर तो घाट शुरू हो गया, तो ट्रक के पीछे चलाना पड़ा, फिर गाड़ी स्लो हो गई, वो ट्रक भी धीमे धीमे चल रहा था। फिर जब मेरा दिमाग ठंडा हुआ तो मैं स्लोली चला रहा था, वो ट्रक पे लिखा था ये तो ऐसे ही चलेगी। वो ट्रक वाले ने क्यों लिखा था पता नहीं, लेकिन मैं तो 25 साल से मार्केट में हूं, मेरे को पता है मार्केट ऐसे ही होता है। तो आपको अपने आप को एडजस्ट करने का, मार्केट आपको एडजस्ट करने के लिए नहीं आया इधर, राइट? यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ, मार्केट इज नॉट गोइंग टू एडजस्ट। मार्केट विल कंपाउंड एट अ पर्टिकुलर रेट, but every year it will fall 15-20% once and every year it will go up 15-20% once. तो आपको मार्केट को झेलने का है, मार्केट आपको नहीं झेलने वाला है, राइट? पैसा बनाने का है तो डिसिप्लिन रखने का है। तो जो भी आप SIP करते हैं, लोग क्या करते हैं, SIP इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगा और नीचे हो गया तो SIP रोकने का बात करते हैं। अरे भाई ऐसा हो सकता है इसलिए तो SIP किया था, राइट? फिर मैंने देखा है कुछ लोग लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन SIP 2000 रुपए का करते हैं। अरे ऐसे नहीं होता है। जो आपके एस्पिरेशंस है, जो आपके गोल्स है, जो आपकी क्षमता है, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके अनुसार निवेश करना चाहिए। अगर आप लाखों रुपए कमाएंगे और SIP 2000 रुपए करेंगे तो उसमें किसी का बंगला नहीं बनेगा, करेक्ट? सो किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपने आप में कोई भी अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ गणित तो होना चाहिए ना कि इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं। इतना इन्वेस्ट करेंगे, इस रेट पे करेंगे तो वो कहां तक पहुंचेगा, कुछ गणित तो करना पड़ेगा ना। तो प्लानिंग के साथ करिए इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन तरीके से करिए और ये याद रखिए कि अच्छा निवेशक होने के लिए लंबा जीना पड़ता है। तो हेल्थ का भी ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी आउट। ऑल द बेस्ट टू यू।